fatty liver and PCOD, it's so damn hard to lose weight. I was expecting some kind of magic only. I just wanted to record this post one day of gym. बस ऐसे हाथ इधर का इधर को जा रहा है. Well, coming back from the gym, I just broke down. Oh my god. I feel like I cried when I lost 1 kg, but 10 kgs में it feels surreal. आपका सबसे अच्छी बात ये कि जो वेट है ना, वेट के प्रोपोर्शन अगर आप देखोगे तो फैट लॉस बहुत अच्छा है, मसल कंट्रोल अच्छा जा रहा है, तो ओवरऑल ये बहुत अच्छी चीज़ है. So disappointing because my body pains all the time. Hello, hi everyone, welcome back to my channel and welcome back to the most awaited video on my channel. It is here, it's finally coming. I told you guys that I have vlogged my 6 months brutally honest, raw, real, no shortcut fitness journey. So in these 6 months starting June, I have lost around 13 kgs and today I'm gonna tell you how. Also you must wait till the end of the video because उसमें मैं कुछ 4-5 tips देने वाली हूँ which have short worked for someone like me who has PCOS as well as fatty liver. Every year since becoming a social media influencer या content creator, I have tried to lose weight. हर साल मैं एक before picture लेती थी. Here is a picture from 2017 or 2018 and उसके बाद से जितनी भी मेरी आप before की pictures देखोगे उसका after तो कुछ हुआ नहीं है. And every year the montage of a before pic became like me progressively gaining weight. But after turning 30 and after being in a roller coaster of a year in 2024, like I did travel a lot and that just exposed me like full on. मुझे पता चला कि जब इतनी hectic life होती है तो कितना health पे impact होता है. I was not able to wake up. I was so puffy. मैं पूरा मेरी body में inflammation था. So first things first is that to have that lifestyle to achieve a good fit body या फिर अगर आप एक ऐसी stage पे हो जहाँ से आपको like 10, 12, 13, 15 किलो lose करने हैं या whatever it is जो आपको एक पहाड़ लग रहा है, you have to sacrifice certain things for a limited period of time and उसके बाद you can get back to it. It's not like आप for life कर रहे हो, but जो चीज आप achieve करना चाहते हो उसमें आपका 100% focus होना चाहिए. Okay, so I started my fitness journey on 2nd of June. Alright, hello. Today is 2nd June. You guys will be watching it way ahead of time, but I just wanted to record my journey. I just wanted to record how I look right now because I am finally starting my sustainable fitness journey in which I'm not falling into any fad diets. I'm not going to any nutritionist. I'm just doing what my mom did for Ravi, for Papa, for herself, and I'm following that religiously. But with that, I want to do some physical activity because मेरा ज़्यादातर काम या तो लैपटॉप के आगे होता है या फिर स्टूडियो लाइट्स के आगे होता है. I do not move my body a lot. I don't go for regular walks. I don't do yoga. I always have this very intense fear of the gym because मैं बहुत जल्दी intimidate हो जाती हूँ machine से and everything. And now that I'm 30 plus, I really want to go into strength training because 30 के बाद लड़कियों में muscle mass कम हो जाता है. मेरी मॉम ने मुझे बहुत सारे podcast दिखाए हैं इस पे, अलग अलग डॉक्टर्स के, अलग अलग न्यूट्रिशनिस्ट के, अलग अलग हेल्थ एक्सपर्ट्स के. एंड आई थिंक वो जो ब्रेन वॉशिंग भी नहीं, ब्रेन प्योरिफिकेशन जो होनी थी वो मेरी उस लेवल तक की हो चुकी है वेयर आई एम रेडी टू टेक दिस स्टेप. सो आई विल बी टेकिंग माई बिफोर एंड आफ्टर बॉडी शॉट्स. आई विल बी मेजरिंग माई वेट. वैसे तो ये चीज़ें फ्लक्चुएट होती रहती है, इतना ज़्यादा नहीं आपको देखना चाहिए एंड इतना नंबर्स ऑब्सेस नहीं होना चाहिए, बट यू शुड ऑलवेज मेजर बाय आप कैसा फील कर रहे हो. इट इज़ 2nd June 2025 एंड आई थॉट कि मैं 1 जनवरी से, जैसे हर बंदा सोचता है न्यू ईयर से अपना जर्नी स्टार्ट करेगी एंड ऐसे प्रोक्रेस्टिनेट करते करते आई एम इन जून राइट नाउ. मुझे PCOD है, मुझे फैटी लिवर है एंड दैट इज़ समथिंग दैट नीड्स good amount of work from my side in order to be healed and in order to be like maintained. दवाइयाँ खाने से कितना ही आप कर लोगे. So these are the things that I have in mind. मेरी sleep improve होनी, मैंने अपने लिए ना एक गैबिट वाली रिंग भी मंगाई है जिससे मैं अपने डेली स्टेप्स, स्ट्रेस लेवल्स एंड स्लीप अच्छे से मॉनिटर कर सकूँ. सो वो आज आ जाएगी. एंड अभी आई एम गोइंग टू द जिम, लाइक नॉट टू एक्सरसाइज. आज मैं पैसे देने जा रही हूँ, सिर्फ जिम नहीं करूँगी. आई विल टेक PT एंड उनको बताऊँगी दैट आई हैव लाइक गुड 1.5 year मुझे आराम से कराओ. अगर मेरा 0.5 kg भी एक महीने में लूज होता है, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, बट आई वांट इट टू बी सस्टेनेबल. आई डोंट वांट कि 3 मंथ में एकदम से वेट ड्रॉप कर दूँ एंड देन उसके बाद ट्रिपल बढ़ जाए. आई हैव डन दिस वे टू मैनी टाइम्स टू अंडरस्टैंड दैट दिस इज नॉट हाउ इट वर्क्स. सो या, आई थिंक वी आर रेडी टू फॉलो Aditi Quirky along her final weight loss journey, hopefully. Without any further ado, let's get started.
It is time to measure my weight, you guys. I thought it will be 75, but 1 kg मैंने घर का खाना खा के ड्रॉप कर लिया, which is a good start. ये और उसे 1-2 वीक पहले से ना मैं हेल्दी खा रही थी एंड पूरे साल मैंने ट्राई किया ही था हेल्दी खाने का, इतना ज्यादा जोरों शोरों से नहीं. सो मैंने जब अपना वेट चेक किया था उससे पहले तो 75 के भी ऊपर पहुंच गया था एंड आई वाज सरप्राइज्ड टू सी कि ठीक है अब मैं 2 या 3 जून को स्टार्ट कर रही हूँ तो मेरा वेट इज 74 एंड आई जस्ट नीड टू ड्रॉप अ केजी फर्स्ट. लाइक मेरा फर्स्ट गोल वाज अ वेरी स्मॉल गोल. आई वांटेड टू ड्रॉप अ केजी एंड देन विल फोकस ऑन 5 kgs, then we'll focus on 10 kgs. 10 kgs was a big landmark for me and you'll see why. So initial changes में what I did to motivate myself was to include more salads and मैंने थोड़ा खीरा वीरा ये सब खाना शुरू किया, बीटरूट खाना शुरू किया. मैं सैलड्स पहले बिल्कुल भी नहीं खाती थी. आई मीन मैं सबवे वाले जो फैंसी सैलड्स जिसमें बहुत ही फैटी सॉसेस भरी होती है वो खाती थी, बट ट्रूली जो घर में आपको खाने से पहले एक छोटी प्लेट सैलड खा लेनी चाहिए वो मैंने अपनी आदत बदलने की कोशिश की. आई ऑल्सो गॉट अ गैबिट रिंग टू ट्रैक माई स्लीप, टू ट्रैक माई कैलोरीज, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि एक रोटी जो हम खा रहे हैं घी लगा के वो हल्का सा घी लगने में भी उसकी कितनी कैलोरीज बढ़ जाती है. दो घी इज गुड फॉर योर बॉडी, लेकिन अगर आप एक कैलोरी डेफिसिट में हो या फिर आप फैट लॉस करना चाह रहे हो तो उसमें एक कैलोरी कितनी मैटर करती है फॉर दैट ब्रीफ पीरियड ऑफ टाइम जब आप कैलोरी डेफिसिट कर रहे हो. यू डोंट हैव टू कंटिन्यू इट फॉर होल लाइफ, नहीं तो फिर आपका एक अनहेल्दी रिलेशनशिप विद फूड हो जाता है. बट इफ इट इज समथिंग दैट कैन हेल्प यू आउट एंड अगर आप इसको पॉजिटिवली ले सको विदाउट मेकिंग योरसेल्फ क्रेजी अबाउट इट, तो ये जो डिवाइसेस होते हैं जिसमें आप थोड़ा अपने फूड लॉग्स डाल सकते हो. डोंट नीड टू बाय अ गैबिट रिंग. आपके एप्स भी बहुत सारी आ जाती है जिसमें आप रिकॉर्ड कर सकते हो कि मैंने क्या खाया क्या नहीं खाया एंड डे के एंड में आपको पता चलेगा कि आपने कितना प्रोटीन खाया, कितने कार्ब्स खाए हैं एंड कितनी आपकी कैलोरीज हुई हैं. एंड देन केम डे 1 ऑफ माई वर्कआउट. हेलो, इट इज डे 1 ऑफ द जिम. आज फ्री ट्रायल पीटी क्लास है. दिस इज व्हाट आई एम वेयरिंग एंड आई एम कैरिंग दिस बैग जिसके अंदर मैं अपना फेस टाल एंड वाटर बॉटल रखूंगी. बट न्यू स्टार्ट, न्यू डे, लेट्स गो. ऑल्सो यू गाइज, आई डिड नॉट रिकॉर्ड, लाइक मुझे था कि मैं डे 1 का अपना सारा वर्कआउट रिकॉर्ड करूंगी, बट वहां पे जाके मैं इतनी पजल हो गई एंड इट वॉज सो स्ट्रेनियस फॉर मी. लाइक आई फेल्ट लाइक आई वॉज हैविंग एन आउटर बॉडी एक्सपीरियंस. आई कुडंट फील लाइक मैं कैसे मूव करूं. एंड वो फर्स्ट डे जब आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी होती है ना, आपने जिंदगी में कभी नहीं की होती. मैंने एरोबिक्स किया हुआ है, मैंने कार्डियो किया हुआ है, मैंने वॉक, साइकिलिंग ये सब की हुई है, बट स्ट्रेंथ ट्रेनिंग मैंने लाइफ में कभी नहीं की थी. मैंने लाइफ में कभी डंबल और ये सब नहीं उठाया था प्रॉपरली उस फॉर्म में. सो आई जस्ट कुड नॉट रिकॉर्ड एनीथिंग ऑन 3rd और 4th ऑफ जून एंड आई वॉज जस्ट लाइक आई हैव रिकॉर्डेड एवरीथिंग, लाइक जाने से पहले एंड आने के बाद एंड उसके अगले दिन के मेरी बॉडी का क्या हाल हुआ. ओह माई गॉड, द फर्स्ट डे ऑफ द जिम was good. We didn't do any cardio. Like शुरू में हमने वार्म अप किया, then आज हमें बहुत सारी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कराई जिसमें I had to fucking lift my own weight and मेरा weight 72 point something आया था. घर में 74 आया, बट उनकी BMI वाली मशीन में, by the way I got my BMI done and I'm obese, so technically need it more now. But yeah, खुद का वेट उठाना वॉज इतना मुश्किल. मैंने उनको बोला मेरी बाजुएं बहुत कमज़ोर है एंड ट्रेनर वॉज लाइक बाजुएं कमज़ोर नहीं है, आपका वेट ज़्यादा है. लाइक नो शिट, आई नो दैट. तो ऐसे ऐसे करके जो उठाया है भाई, मेरे जो डोले हैं ना उनको असल में डोले बनाने का टाइम आ गया. बिकॉज वॉट द हेल इज दिस. मैंने 1 मंथ का भी पैकेज लिया है, मैंने ज़्यादा टाइम का नहीं लिया. आई विल सी हाउ इट गोज. हमेशा मैं 3-4 मंथ का दे देती हूँ, फिर जाती नहीं हूँ, स्किप कर लेती हूँ एंड पैसे वेस्ट करती हूँ. सो आई डोंट वांट टू डू दैट. फर्स्ट मंथ का देखेंगे एंड विद इन 25 days अगर मुझे अच्छा लगा देन आई विल एक्सटेंड इट फॉर 6 months और 1 year. बट या, सो फार सो गुड. अभी थोड़ी देर में जब शरीर अकड़ना स्टार्ट होगा तब देखते हैं. मैंने अपनी मालिश वाली आंटी को भी बुला लिया. आई रीहायर्ड हर ताकि वो आके मेरी थोड़ी मसाज कर सके, बट उससे पहले आई विल जस्ट टेक अ बाथ. कैसा लग रहा है मम्मी? ऐसे हिले डुले हो रहे हैं. How do you feel? बस ऐसे हाथ इधर का इधर को जा रहा है. यही हो रहा है. फर्स्ट थिंग दैट आई वांट टू टेल यू गाइज अपार्ट फ्रॉम लाइक गैबिट रिंग लेना या अपनी कैलोरीज ट्रैक करना या फिर सैलड, ऐसी हेल्दी छोटी छोटी चीजें इंक्लूड करना, इज दैट आई नो एक्सरसाइज जिनको करने की जरूरत है, जिनको वर्कआउट उनके डॉक्टर्स भी रेकमेंड करते हैं, उनके लिए कितना बड़ा डर होता है. वो फर्स्ट डे जस्ट टू स्टार्ट इज समथिंग दैट इज even bigger than continuing it. So वो पहला दिन बहुत ज़्यादा daunting होता है and मेरे लिए on a personal level was because of the fact that sore muscles हो जाती हैं. That is when magnesium lotion really helped me. So मैं Hoop का magnesium lotion use करती हूँ. This video is not sponsored in any way. You just need to hydrate your body and आपके काफ़ी stretch marks, like when you look at your body 5 to 6 months down the line, जब एक improvement हो गई होगी, you will feel like okay stretch marks तो आए नहीं, and that is something that can be avoided अगर आप शुरू से ही अपनी body hydrate करते रहो. एक बार हो गए तो उसको करना बहुत मुश्किल है. So that is also what I wanted to address. This is what I've ordered from Blinkit. Don't have too many high hopes. इसमें sleep minerals भी लिखा हुआ है, कहीं मैं एकदम ही निंदियाई हुई ना हो जाऊं.
लैवेंडर फॉर स्लीप, मैग्नीशियम फॉर मसल्स. मुझे बस सूद करनी है अपनी मसल्स समहाउ, बिकॉज आज हमने सारा आर्म्स का वर्कआउट किया था एंड चेस्ट का किया था. सो अभी मैं ऐसे मुंह भी धो रही थी, नहा के आई हूँ ना मैं, यू कैन सी माई वेट हेयर. तो ऐसे शैम्पू मलने में दर्द हो रहा था मुझे. बट ठीक है, विल पावर थ्रू. ऑल्सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू शो कि मेरा डे 1 के बाद जब मैं अगले दिन उठी हूँ तो वो क्या हाल था, कैसा मैं फील करी थी. आई जस्ट वांटेड टू रिकॉर्ड एवरीथिंग, माय रॉ रियल इमोशंस. इट इज डे 2 ऑफ माय जिम. अभी मैं गई नहीं हूँ, बट आई जस्ट वांटेड टू रिकॉर्ड दिस पोस्ट 1 डे ऑफ जिम फीलिंग जो मैं कर रही हूँ, बिकॉज इसके बाद मैं आपसे अब 1 महीने बाद मिलूंगी, अबाउट 3rd और 4th ऑफ जुलाई, माई बर्थडे मंथ. बट या दिस इज़ वॉट इज़ हैपनिंग टू मी राइट नाउ. कल मैंने बहुत ट्राई की, बिकॉज एवरी वन इज़ लाइक कि जिम के बाद ना आके पड़ मत जाओ, बॉडी को मूव करते रहो. मेरा बहुत सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है, बट मैं गई, मैं ईशान से मिली हूँ, मैं इधर उधर मूवमेंट किया है. मैं पूरा दिन ऐसे ऐसे, जब भी मुझे लगा मेरी बॉडी में अकड़न हो रही है, मैं ऐसे ऐसे करती रही. इट्स लाइक व्हेन एवर आई एम डूइंग दिस, व्हेनेवर आई एम डूइंग दिस, व्हेनेवर आई एम डूइंग दिस, तो मेरे 4 तो कड़ाके बज ही रहे हैं बॉडी के. एंड यही हो रहा है अभी लाइफ में. बट रात को सोने के बाद, उसके बाद उठी ना, बहुत अकड़न हो रही थी. फिर मैंने थोड़ा स्ट्रेच और थोड़ा सा ऐसे ऐसे अपने बॉडी को हिलाना शुरू किया, बिकॉज द पर्सन जिसने बहुत लाइक कितने 4-5 सालों से वर्कआउट ना किया हो, डाइट पे थोड़ा रिलाई कर रहा हो, ठीक है, डाइट से ही होता है, कैलोरी डेफिसिट से ही वेट लॉस होता है. बट आई वांट टू इंटेंशनली बिल्ड मसल्स, ताकि मैं स्ट्रॉन्ग हो सकूँ लाइफ में, ताकि मेरी इंड्योरेंस बढ़ सके, ताकि मेरा स्टैमिना बढ़ सके. बिकॉज वेट लॉस इज नॉट कटिंग इट एनी मोर आफ्टर 30. सो आई रियली वॉन्ट टू बी माइंडफुल अबाउट दिस प्रैक्टिस. एंड या आज सेकेंड डे है, आई विल गो एंड वर्कआउट. यूजुअली मैं सेकेंड डे स्किप कर जाती हूँ और 3rd डे जाती हूँ, एंड फिर हफ्ते बाद जाती नहीं. दैट इज माई पैटर्न एंड आई रिकग्नाइज्ड इट. तो आज तो जाएंगे. बेचारी मेरी मम्मी का भी बुरा हाल है. आई वॉन्टेड टू डॉक्यूमेंट दिस बिकॉज द फ्यूचर अदिति जो कि फिट हो चुकी होगी, शी विल बी सुपर प्राउड ऑफ दिस वन राइट हियर. सो दिस इज ऑल्सो टाइम ट्रैवल दैट आई एम डूइंग, नॉट फॉर you guys, but mostly for myself. It's a selfish vlog, but I will see you guys on 3rd or 4th of July, and hopefully a little okay. Now sitting here in January 2026, I do feel very proud of the June July Aditi 2025 की, and I also feel a little sad because I just look at myself and I'm like, किसी ने मुझे इतना intensely बोला नहीं था that what I had become, and इतना ज़्यादा face पे inflammation, इतना मेरे face पे stress दिख रहा है, my body feels heavy, and even like अगर आप सुनोगे ना तो मेरी वॉइस भी, बिकॉज देयर वाज सो मच फैट एक्यूमुलेटेड हेयर. मुझे बहुत सारे लोग बोलते थे आप अपना थायराइड चेक करो, थायराइड मुझे है ही नहीं. बट बिकॉज ऑफ द फैट दैट वाज एक्यूमुलेटेड इनसाइड माय नेक, मेरी आवाज भी बहुत ज्यादा डिफरेंट हो गई थी. एंड आई जस्ट डोंट नो कि मतलब मेरे को उस टाइम बिल्कुल फील नहीं हुआ कि इतने सारे मेरे में चेंजेस आ रहे हैं. आई फेल्ट लाइक आई वाज डूइंग फाइन, बट आई डू फील, आई हैव टू बी ऑनेस्ट, अ लिटिल सैड अबाउट दैट वर्जन ऑफ मी. बट I feel incredibly proud that I took this step to become who I am today. So after starting in June first week, I think 1 week हुआ था, उसके बाद I dropped a few grams, and that was like what a happy moment. I think the first drop was from 74 to 73.4 kgs, like I think 600 ग्राम कुछ कम हुए थे. And I was like wow, 500 ग्राम से भी ज्यादा, 600 ग्राम में 1 kg की राह पे निकल पड़ी हूँ. And then came week 2. Oh my god. Oh my god, look at that, 72.8. My god. We started from 74 kgs and last week it was 73.6, no 4, and I lost more than 1 kg in about 2 weeks. I am so happy right now because I've been trying to lose this weight for such a long while. And with the right method, I feel so good because I feel stronger. Okay, मैं weights lift कर रही हूँ and everything, so I feel stronger, and I'm eating so good, and I'm also on the first day of my period. So periods के time पे थोड़ा water, you know, weight होता है, water weight bloating, I don't know, maybe मेरे को water tension ना हो रही हो because I'm eating so good. So I will consider this my own weight. Period वगैरह मैं कुछ ऐड नहीं करी. 72.8. But I'm so happy. I am so freaking happy. I mean, you can literally see how happy I was. Very grateful कि मेरे जो Anytime Fitness में जीत गुलिया सर हैं ट्रेनर, वो one of the senior trainers हैं. उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से ट्रेन किया, इवन मुझे और मेरी मॉम को. So क्योंकि मैंने पर्सनल ट्रेनिंग ली थी ना, तो उसमें होता है कि आप पर मंथ अपना BMI टेस्ट करा सकते हो जिम में जाके. They have this BMI मशीन. तो उसमें आपको ये नहीं पता चलता है कि आपका वेट अगर 74 है तो आपकी बॉडी में पूरा 74 kg फैट ही है. That's not true. So अगर आपका वेट 74 है तो उसमें
से वाटर वेट कितना है, आपके अंदर लीन मसल मास कितना है, एंड एक्चुअली आपका फैट कितना है. इट ऑल्सो टेल्स यू कि आपका विसरल फैट कितना है, विच इज सो डेंजरस. एज अ फैट, लाइक विसरल फैट इज द काइंड ऑफ फैट दैट कवर्स योर ऑर्गन्स. एक आपका सबक्यूटेनियस फैट होता है जो आपके स्किन के अराउंड होता है, बट एक आपके ऑर्गन्स के अराउंड फैट इकट्ठा हो जाता है. जून से लेके जब जुलाई में टेस्ट कराया, देयर वर सम इम्प्रूवमेंट्स एंड आई वाज रियली रियली हैप्पी. इट्स 1 month later BMI day. आप चले जाओ वहाँ पे. नहीं, 12 बजे आएगी टीना, अभी तो नहीं. कम तो हुआ ही है. तो 1 महीने बाद हमने BMI फिर से कराया है जुलाई में. ये क्या होता है परसेंटेज? मेरा रिजल्ट कैसा आया बताओ. आपका रिजल्ट बहुत प्यारा आया है. हाँ. और आपका सबसे अच्छी बात यह है कि जो वेट है ना, हाँ. वेट के प्रोपोर्शन अगर आप देखोगे तो फैट लॉस बहुत अच्छा है, मसल कंट्रोल अच्छा जा रहा है, तो ओवरऑल ये बहुत अच्छी चीज है. अच्छा. तो आपका डाइट और ट्रेनिंग बहुत अच्छी चल रही है. थैंक यू. मेरे को क्या बोल रहे थे आप कि 10 में से कितने लोगों का आता है, कुछ आपने आप बताया. 100 देखते हो. हाँ. तो 10 पीपल ऐसे होते हैं जिनके इतना आता है, बाकी 90% के ऐसा है कि पहले वेट गिराएगा या फैट लॉस करेगा, फिर स्कैन बढ़ाएगा. तो ओवरऑल वो आपका बहुत प्यारा है. चलो, तो मतलब मेरा वेट ऐसा कुछ वो कम जितना हुआ, लेकिन मेरा फैट कम हुआ है एंड मेरा थोड़ा मसल बढ़ गया. That's my BMI. And around this time, I think I had reached 72 or 71 kgs. And the routine that I stuck by was that I did strength training 6 days a week. And I started doing compound exercises जो मेरे ट्रेनर ने इंक्लूड की थी. एंड कंपाउंड एक्सरसाइजेस काफ़ी रैपिड वेट लॉस में हेल्प करती हैं, लाइक डेडलिफ्ट्स एंड ऑल, वेटेड स्क्वाट्स वगैरह करते हो. एंड आई वाज आल्सो डूइंग 10 to 15 minutes ऑफ कार्डियो आफ्टर माई स्ट्रेंथ ट्रेनिंग. यू डोंट वांट टू डू कार्डियो पहले, क्योंकि वो आपको पूरा थका देती है, फिर आप में उठाने की हिम्मत नहीं रहती. तो ऑलवेज डू स्ट्रेंथ ट्रेनिंग फर्स्ट, एंड देन अगर आप में हिम्मत बची है तो 10 मिनट या 15 मिनट से ऊपर नहीं करना चाहिए, बिकॉज देन जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है उसका इम्पैक्ट कम हो जाएगा. ये सब मैंने सुनी है बातें. सो मैं जो अपना पर्सनली अप्लाई करती हूँ इज टू डू 1.5 hour ऑफ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एंड देन बाद में 10 मिनट कार्डियो कर लेना. बट ऑफ कोर्स जब मैंने स्टार्ट किया था जून में, आई वाज डूइंग ओनली लाइक 45 minutes वर्कआउट, सब कुछ इंक्लूडेड. एंड अब जाके आफ्टर 6-7 months मैं अब 1.5-2 घंटे जिम में बिता पाती हूँ, एंड मुझे पता भी नहीं चलता कि टाइम कब बीत गया, बिकॉज आई डू रियली लव इट. तो एसेंशियली जून वॉज वेयर आई started doing stuff blindly, like मैं ट्रेनर को ही फॉलो कर रही थी. जुलाई में भी कर रही थी, बट दैट इज व्हेन आई बिकेम वेरी कंसिस्टेंट विद माय वर्कआउट्स. डाइट पे मैं इतना ज्यादा फोकस नहीं कर रही थी, बिकॉज इट वाज आल्सो माय बर्थडे मंथ. आई वाज लाइक यार थोड़ी बहुत तो बद परहेजी हो ही जाएगी, जो खाना होगा वो मन का खाएंगे ही. बर्थडे मंथ में कौन ऐसे करता है. सो मैं कम भी खा रही थी, मतलब बाहर का जो जंक वगैरह जो मेरे लिए बुरा है, बट आई वाज आल्सो ईटिंग यार, मैं ऐसा नहीं बोलूंगी. सो इसलिए मुझे कॉन्फिडेंस हो रहा था, क्योंकि मैं जिम जा रही थी एंड मैं पहले से जून के कंपैरिजन में बेटर वेट उठा पा रही थी. सो आई वाज लाइक ओके, इट इज लाइक मेरे को प्रोग्रेस दिख रही है. एंड जुलाई एंड तक मुझे थोड़ा सा इंच लॉस भी फील होना शुरू हो गया था. सो आई वाज लाइक ओके, वी आर ऑन द राइट ट्रैक. एंड ऑल्सो आई डिड व्लॉग माई बर्थडे. मैंने जिम बर्थडे के दिन भी अपने मिस नहीं किया है, एंड आई फेल्ट रियली रियली ग्रेट. हैप्पी बर्थडे टू मी. इट्स 28th of July 2025 एंड आई एम रेडी फॉर द जिम. नॉट गोना लाई, जून से स्टार्ट किया था, 3rd जून से, एंड 28 जुलाई तक आते आते आई हैव बीन लविंग दिस फीलिंग ऑफ गोइंग टू द जिम, बिकॉज व्हेन आई गो टू द जिम मेरे एनर्जी लेवल्स बेटर होते हैं, मैं ज़्यादा प्रोडक्टिव हो पाती हूँ, एंड इट जस्ट रियली इफेक्ट्स हाउ माई फेस एंड बॉडी लुक्स. सारा वो वाटर रिटेंशन ब्लोटिंग चली जाती है, एंड आई फील ब्यूटिफुल, आई फील बेटर, आई डोंट फील इन्फ्लेम्ड ऑल ओवर. सो लेट्स गो टू द जिम एंड किक एस. एंड यू कैन क्लियरली सी इन माई एनर्जी, आई जस्ट चेंज्ड एंड आई बिकेम वेरी वेरी हैप्पी. Oh my god. इससे पहले भूल जाए, मैं फटाफट फूंक मार देती हूँ. Mummies are always super happy. सर ये क्या हो रहा है? मीठा खा रही है ये?
I ate way too much in July. I also had alcohol. Alcohol is so bad for your body. मैं सीक्वेंस में ही बता रही हूँ जैसे जैसे चीजें आ रही है. Oh my god, अल्कोहल अगर आपने फैटी फूड भी खाया you guys एंड उसके बाद आप अल्कोहल पीते हो, इट इज अ टॉक्सिन इन योर बॉडी. तो आपकी बॉडी को सिग्नल मिलेगा कि जहर आया मेरी बॉडी में. सो वो जो भी आपने खाए हैं उसके न्यूट्रिएंट्स आपको लगे ना लगे वो सब कुछ एज फैट स्टोर कर लेगी एंड टॉक्सिन पे कॉन्सेंट्रेट करेगी उसे बॉडी से निकालने में. इसलिए अल्कोहल अगर आपको आदत है सिगरेट अल्कोहल और ऐसी चीजें कंज्यूम करने की, प्लीज ट्राई टू लिमिट देम. इट विल रियली रियली हेल्प आउट इन योर फिटनेस जर्नी. तो अब आते हैं अगस्त में, बिकॉज अगस्त में एज आई टोल्ड यू गाइज मैं खा रही थी ये सब. ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ यही खा रही थी, मैं अंडे भी खा रही थी, मैं काफी अच्छी अच्छी चीजें भी अपनी बॉडी में डाल रही थी. 18 तारीख थी वो, आई रिमेंबर 18th of August था एंड आई वॉज लाइक ठीक है आज BMI के दिन के अराउंड का हो गया है, आज अगस्त में 3 महीने हो गए BMI करके देखते हैं. एंड आई वॉज so disappointed to say the least. Okay, so I just got back from the gym and today is 18th August. Last BMI जो बॉडी का पूरा वो composition का होता है we did was around जुलाई की शुरुआत में. एंड या it was my birthday, it was Ishan's birthday, सबका सब कुछ. एंड I got carried away in celebrations. मैंने बाहर का खाया, मैंने अल्कोहल पी, I had some yummy like क्या बोलते हैं उनको, अनियन रिंग्स, सोया चाप घर का. मेरा बर्थडे था, हलवे. बीच में मैं ब्राउन कुमारीज गई थी तो वहाँ पे भी सात्विक फूड था बट प्रोटीन कम था एंड कार्ब्स ज़्यादा थे. सो ये सब तो हुआ ही. एंड बर्थडेज और ये सब ट्रिप के बीच में 10 दिन की छुट्टी भी हो गई. सो आज हमने फाइनली वो पूरा कॉम्पोजिशन टेस्ट किया एंड इट टर्न्स आउट जितना मेरा पिछली बार मसल मास बढ़ा था वो कम हो गया है. एंड जो डे 0 से मैंने स्टार्ट किया था, जिस दिन फर्स्ट डे मैंने ज्वाइन किया था जिम, आई एम बैक टू दैट मसल मास एंड मेरी बॉडी में फैट बढ़ा है. सो मेरा वेट कम आया है स्केल पे, विच मीन्स कि मेरी मसल कम होके वेट कम आया है, मेरा फैट कम नहीं हुआ है. आई मीन व्हेन आई लुक इन द मिरर या मैं अपना फेस देखती हूँ तो मुझे थोड़ा स्लिमिंग डाउन इफेक्ट दिख रहा है, मुझे यहाँ पे इफेक्ट दिख रहा है एंड आई फील पतली इन जनरल लाइक. बट इट्स जस्ट सो डिसअपॉइंटिंग. लाइक आप 10 दिन की छुट्टी मारो और थोड़ा सा अपने ट्रैक से डेविएट हो जाओ तो यू आर बैक टू स्क्वायर वन. But I'm not gonna let it bother me too much. I'm gonna cry and wipe my tears and I'm just so disappointed because I feel stronger. मैं उठा रही हूँ ज़्यादा वेट्स पहले दिन से जितना मैं नहीं उठा पा रही थी and I feel good in the gym. मुझे लगा that will translate in my result but ऐसा कुछ नहीं हुआ and now I feel like a total loser. मैंने वहाँ जिम में कुछ दिखाया नहीं, मैं नहीं रो रही थी वहाँ पे. I was like ठीक है I'm fine और मेहनत करेंगे. but while coming back from the gym I just broke down because being someone who has fatty liver and PCOD, it's so damn hard to lose weight and gain muscle. It's 10 times harder and I get these ugly acne pimples all over and मेरी sensitive skin है. मेरे जिम में भी पसीना जैसे ही मेरे फेस पे आता है वैसे मेरे pimples पनपने लगते हैं. So I have other issues as a person whose job is on the camera. But yeah, I'm not gonna let it bother me. I will control my diet. बाहर का नहीं खाना है. प्रोटीन मैं अच्छा खासा ले रही हूँ. I don't know why it's not hitting my body. मेरी बॉडी न्यूट्रिएंट्स और ये सब अब्जॉर्ब नहीं कर रही है for some reason. And I will, it's so disappointing because my body pains all the time. And after 2-3 months, I'm back to where I started. Hopefully September will be good. Just wanted to record this. I know people are like, who the hell cries and records themselves on camera? Me, I do that. And it's a part of my job to show real emotions. If you have a problem with that, fuck off. And if you can appreciate the realness of this whole thing, this whole journey,
तभी देखा करो यार, नहीं तो मत देखो, इट्स ओके। सी यू गाइस इन सितंबर, hopefully with a better josh and energy. I think that day ignited some kind of fire in me, some kind of जिद होती है ना, जिद पूरी आपको धुन चढ़ जाती है in me, that I was like, okay, I am gonna lock in for the rest of the month till I don't achieve my goals, and I am not gonna like, मैं देखूंगी भी नहीं ऐसे processed carbohydrates की तरफ, and that was something strict जो मैंने अपने साथ किया. Of course 1-2 मंथ बाद मैं फिर ढीली थोड़ी हो गई, but I did not let it hamper my progress, because उस दिन के बाद से I started learning कि मेरी बॉडी कैसे फंक्शन करती है. मैं फिर से वो गैबिट वाले लॉग्स में वापस गई, मैंने फिर देखा मैंने कहाँ किस दिन क्या गलती की थी, कहाँ मेरी कैलोरीज बढ़ी थी. यू नो व्हाट, उस टाइम पे जब मैं रो रही थी, जब मैं इतना ज्यादा दुखी हो रही थी, आई वाज जस्ट लाइक, बाद में मैंने ये सोचा कि I can be a lot of things, you know. I can be dramatic, I can be rude, I can be lovable, I can be so beautiful, sexy, I can be petty, I can be mean. But if there's one thing that I'm not, is a loser. I'm not a loser, and I'm never gonna let this bog me down. मेरी लाइफ में कभी भी किसी भी टॉपिक से रिलेटेड सेटबैक्स आए हैं, I've never accepted them. I've always fought. एंड दैट्स व्हाट आई डिड. इस बारे में भी उस दिन के बाद से मैंने कैलोरी डेफिसिट में भी रिसर्च किया. आई एजुकेटेड माई सेल्फ के कोई भी चीज़ लाइक अगर मैं एक बिस्किट का पैकेट ले रही हूँ, या फिर इवन इफ एक प्रोटीन शेक है, प्रोटीन बार है जो इतनी ज़्यादा मीठे वाली शुगर वाली लोग बेचते रहते हैं प्रोटीन के नाम पे, उनका लेबल पीछे कैसे रीड करना है, इंग्रेडिएंट्स कैसे रीड करने हैं, हाउ इज इट दैट आई शुड सी के इवन इफ इट इज ऑफरिंग 10 grams ऑफ प्रोटीन, कैलोरीज कितनी होनी चाहिए, लाइक इज इट वर्थ हैविंग 10 grams ऑफ प्रोटीन अगर इतनी ज्यादा कैलोरी मिल रही है. वो रेशियो मेरे को समझ में आने लगा. ऑल्सो वर्कआउट्स में मैं और ज्यादा डेडिकेटेड हो गई. मैं ट्रेनर से सवाल पूछने लगी. आई वाज लाइक, सर ये वाली जो एक्सरसाइज अगर हम बैक की कर रहे हैं तो ये कौन से पार्ट ऑफ बैक में होगा, कहाँ मुझे फील करना है, मेरा यू नो जो पोज है, जो फॉर्म है, वो कैसी होनी चाहिए. एंड आई बिकेम मोर सीरियस कि वट एवर आई एम डूइंग उसका कुछ ना कुछ इम्पैक्ट मेरे पे होना चाहिए. इट शुड यील्ड मी रिजल्ट्स. आई बिकेम वेरी गोल एंड रिजल्ट ओरिएंटेड ड्यूरिंग लाइक आई वुड से August का second half, September, October and even November were my most successful months of weight loss, fat loss specifically, because उसके बाद भी मैंने BMI कराया and मेरी muscle was intact and मेरा fat loss ही हुआ है. In fact मेरा जो visceral level था, I think 13 से start किया था, कहाँ से start किया था, वो भी मेरा normal जो healthy range visceral fat है उसमें आ गया. And yeah, it's very simple, it's execution में difficult हो जाता है, but it's a very simple sentence. I made a routine and I stuck to it. But real life में it is hard, I know that. Guys, I am 158 centimeters, which is like 5 to 5'3" की height, and my weight was 74 kgs. And according to my BMI, जो मेरी height है और जो मेरी age है, उसके हिसाब से मेरी जो healthy weight range है should be between 58 till 62 kgs. 55 भी हो सकती है, वो थोड़ी सी अंडर हो जाएगी. एंड आई थिंक 62 ही लास्ट है, उससे ज्यादा मेरा होना नहीं चाहिए. एंड वो BMI मशीन में आई डोंट नो हाउ एक्यूरेट इट इज, बट मेरे लिए बहुत वो हेल्पफुल था उस टाइम देखना, बिकॉज इट वॉज लाइक कि अगर आपको बेस लाइन अपना अभी जो वेट है वो मेंटेन करने के लिए कितनी कैलोरीज चाहिए अकॉर्डिंग टू योर हाइट एंड एज, विच इज अराउंड 1800 कैलोरीज, जो अगर मैं ऑन अ डेली बेसिस खाऊं 1600 to 1800 कैलोरीज, तो मेरा अगर 74 kg है वो 74 kg ही रहेगा. उससे ज्यादा खाऊंगी तो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा. सो कैलोरी डेफिसिट करने के लिए आपको एक रूल अप्लाई करना होता है कि आप 200 से 300 कैलोरी कम खाओ जितनी आपकी मेंटेनेंस की रिक्वायर्ड है. सो अगर मेरी 1800 या 1600 है, आई विल ट्राई कि मैं 1500 खाऊं, आई विल ट्राई कि मैं 1300 खाऊं, लाइक डिपेंडिंग ऑन द डे. इफ आई एम नॉट फीलिंग दैट लाइक क्रेविंग्स वगैरह नहीं हो रही है तो मैं थोड़ा कम खा लूंगी. बट अगर किसी दिन मुझे ज्यादा भी हो रही है तो आई नो कि मुझे 1500 से ज्यादा नहीं खाना है, उससे कम खाना है. एंड ऑन डेज वेयर आई एम नॉट फीलिंग दैट हंग्री, मैं 1300 कैलोरीज खा रही थी, तो 1300 to 1500 मैं बना के रख रही थी. एंड मैंने हर दिन इतना ही खाया है, इससे 1 कैलोरी ज्यादा आई डोंट थिंक मैंने खाई होगी. एंड इट्स नॉट लाइक कि मैं सिर्फ प्रोटीन पे कॉन्सेंट्रेट करी थी. इट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट फैक्टर्स कि मेरे 90 to 100 ग्राम प्रोटीन होने चाहिए. पहले मैंने 80 से स्टार्ट किया, बिकॉज पहले तो मैं बिल्कुल भी प्रोटीन नहीं खाती थी. तो 80, 90, 100 ग्राम पर डे प्रोटीन होना चाहिए, स्पेशली व्हेन यूर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, योर मसल्स नीड दैट. बट अपार्ट फ्रॉम दैट मैं इंक्लूड करती थी अपने लाइक सुबह उठते ही सोक नट्स खा रही, तो हेल्दी फैट्स होंगे, गंदे वाले फैट्स नहीं होंगे. यू विल हैव इलेक्ट्रोलाइट इन नारियल पानी एंड प्रोटीन शेक वगैरह राइट आफ्टर वर्कआउट लेती थी मैं. आई यूज टू हैव एग वाइट्स, क्योंकि मैं डेफिसिट में थी तो मैं फैट कट आउट कर रही थी बहुत ज्यादा. कभी कभी 1 या 2 एग योक लाइक होल एग ले लेती थी येलो के साथ, बट मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने एग वाइट ही लिया एंड येलो सिम्बा ने खाया है. देन लंच में आई यूज टू समटाइम्स टेक मटर पनीर और पालक पनीर, तो पनीर से भी थोड़ा बहुत प्रोटीन मुझे मिल जाता था. एंड हेल्दी कार्ब्स मिलते थे, लाइक ट्रांस
फैट या फिर जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ना, एकदम टिपिकली फ्राइड फूड, वो वाला मैं नहीं खा रही थी, जबकि मुझे फ्राइड फूड बहुत पसंद है। यू गाइस, यू हैव नो आइडिया हाउ मच आई लाइक क्रिस्पी फ्राइड फूड, लाइक अनियन रिंग्स, पेरी पेरी फ्राइज। कार्ब्स एंड फैट्स वाली होती थी, वो मैं लंच में खाती थी, एंड रात को फिर से आई यूज टू गो टू प्रोटीन, सो ईदर अ स्मूदी विद समथिंग मोर प्रोटीन, लाइक वेजीज के साथ बड़ा सा ग्रिल चिकन ब्रेस्ट, या फिर सोया न्यूट्रिला वाली जो मैं एक आपको रेसिपी बताई थी एयर फ्रायर की, वो खा लेती थी। देयर वर अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड आई एंजॉयड दिस प्रोसेस थ्रू एंड थ्रू, बिकॉज आई लर्न टू कुक, आई लर्न टू मेक सो मैनी न्यू रेसिपीज। शुरू में मैं 6 days a week जा रही थी, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग प्लस कार्डियो कर रही थी। आई वॉज ऑल्सो डूइंग रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, मोबिलिटी एक्सरसाइजेज, बीच में HIIT हाई इंटेंसिटी भी करवाया था, विच डिड नॉट सूट मी एट ऑल। इंड्योरेंस वाली एक्सरसाइजेज भी मुझे बहुत वियर्ड लगती है, लाइक पूरी सांस फूल जाती है मेरी। ऑल्सो जब मेरे पीरियड्स होते थे, ये मैंने वैसे तो अपनी पिछली वीडियो में बताया था, बट सिंस वी आर ऑन दिस टॉपिक, पीरियड्स के टाइम पे आई हैव नो शेम इन skipping 2-3 days, बिकॉज मेरे काफ़ी पेनफुल पीरियड होते थे, एंड आई वॉज वेरी वेरी ट्रांसपेरेंट विद माई ट्रेनर ऑल्सो कि मेरे को बहुत ज़्यादा पेनफुल पीरियड्स होते हैं, एंड आई जस्ट टू द पॉइंट दैट आई लिटरली कैन नॉट गेट अप। अगर मैं बेड से उठी इवन टू गो टू द टॉयलेट, मुझे चक्कर आ जाएगा। सो ऐसी वाली हालत होती थी मेरी, एंड ही वॉज ओके विद इट। सो आई डिड स्किप, लाइक जब मेरा होता था तो मैं हफ्ता नहीं जाती थी, या 4 दिन नहीं गई, या 2 दिन नहीं गई, या 3 दिन नहीं गई, ऐसे करके मैंने शुरू के मंथ्स बिताए हैं। ऑल्सो आई एड अ लॉट ऑफ डार्क चॉकलेट। ये मेरा एक चीट सॉर्ट ऑफ थिंग होता था कि 80% या 70% बिटर जो डार्क चॉकलेट होती है वो मैं खाती थी, बिकॉज उसमें मैग्नीशियम होता है आई थिंक, एंड वो भी पीरियड्स के दिनों में वो एक मीठे की क्रेविंग, चॉकलेट की क्रेविंग, डार्क चॉकलेट रियली सूट्स यू ड्यूरिंग योर साइकिल के टाइम पे। एंड ऑल्सो मैंने माई ड्यूटी की क्रैनबेरी वाली बहुत अच्छी चॉकलेट थी, वो खाई थी, प्रोटीन वाली थी, एंड उसके इंग्रेडिएंट्स ठीक है, सो आई यूज टू हैव दैट ऑल्सो। पीरियड डे 3 के टाइम पे आई यूज टू डू यही स्टूडियो में लाइट वर्कआउट्स एज वेल। मेरी मम्मी का भी ट्रेडमिल पे वॉक करती थी, मैं वेट्स उठा लेती थी। आई डू गेट दिस क्वेश्चन अ लॉट के आफ्टर 6 months या आपने जब वर्कआउट करना स्टार्ट किया, मेन क्योंकि PCOS एंड फैटी लिवर आपका इशू था, तो पेनफुल पीरियड्स में या आपके साइकिल कितने रेगुलेटेड हैं, ओवरऑल पीरियड्स में क्या डिफरेंस आया है। सो आई जस्ट वांटेड टू शो यू गाइस के व्हाट वाज द फीडबैक या व्हाट आई फेल्ट आफ्टर लाइक वर्किंग आउट फॉर 15, 20, 30 days, लाइक 1 month बाद क्या चेंजेस मेरे में आए या क्या चेंजेस नहीं आए। Watch for yourself. Okay, I want to document this. It is 19th of June. 2 days back I got my period and I skipped gym. So क्या कर रही हूँ मैं कि मैं फ्राइडे तक जा रही हूँ, मंडे टू फ्राइडे, एंड देन सैटरडे संडे नहीं जा रही। तो सैटरडे संडे आया एंड मंडे को आई थॉट कि मेरे को पीरियड्स हो गए बिकॉज देयर वाज अ लिटिल बिट ऑफ ब्लीडिंग, सो आई स्किप द जिम एंड मंडे नहीं हुए। एक दिन मैंने उसमें वेस्ट कर दिया बिकॉज थोड़े थोड़े क्रैम्प्स हो रहे थे, सो आई वाज लाइक कि कहीं जिम में एकदम फुल फ्लेजेड ना हो जाए, देन मैं पैनिक कर गई। सो आई वॉज एक्सपेक्टिंग सम काइंड ऑफ मैजिक ओनली बिकॉज आई वॉज फीलिंग सो गुड मेंटली एंड फिजिकली भी अच्छा फील कर रही थी पिछले 15 दिन से। सो आई वॉज लाइक कि दिस टाइम तो पीरियड्स को मैं किल कर दूंगी एंड कोई दर्द नहीं होगा, बट आई have to say this was the most painful period of at least 20-25 जो मैंने अभी तक 6 months में देखा है। लाइक बहुत ज़्यादा पेनफुल था, एंड आई थिंक इसमें गलती मेरी भी है बिकॉज मैं पहले हल्का सा भी पेट में क्रैम्प होता था मैं पेन किलर ले लेती थी बिकॉज आई एम वेल अवेयर दैट मेरे पीरियड्स होते हैं डेडली, बट इस बार मैंने सोचा कि नहीं ज़्यादा दर्द नहीं होगा, तो मैंने लिया नहीं, एंड देन इट गॉट टू अ पॉइंट where I felt like it's a near death experience. like मेरे मतलब जहाँ पे इमेजिन नहीं कर सकते वहाँ मेरे लोअर बॉडी में दर्द हो रहा था। I wasn't able to walk, मुझे चक्कर आ रहे थे, and that is how my period is on day 1. तो मैं टेक्निकली सैटरडे संडे एंड 2 या 3 दिन, क्योंकि एक दिन पीरियड हुआ नहीं था, ऐसे ही छुट्टी ले ली, तो मैं 5 दिन बाद जिम जा रही हूँ, एंड आई एम रियली स्केर्ड कि मेरी बॉडी फिर से ना अकड़ जाए। गर्ल्स का वेट लॉस जर्नी ना इतना इजी नहीं होता है कंपेयर टू लाइक मैन, उनका एक हार्मोनल साइकिल ऐसे लीनियर होता है, एंड गर्ल्स का ऊपर नीचे ऐसे वेवी होता रहता है। सो दिस इज समथिंग दैट इज़ अ प्रायोरिटी इन माई लाइफ के ओवर टाइम व्हेन आई एम इन अ हेल्दी लाइफस्टाइल एंड मैं सब कुछ अपने लिए प्रॉपरली कर रही हूँ। इवेंचुअली आई रियली वांट कि मेरे हार्मोन्स बैलेंस हो जाए, एंड मेरा जो PCOD के बहुत 36 तरह के गंदे सिम्टम्स होते हैं, एंड ये जो पेनफुल पीरियड्स होते हैं, ये थोड़े से बेटर मैं मैनेज कर लूँ। एंड माई गोल इज कि एक दिन मेरे को अपने पीरियड क्रैम्प्स के लिए पेन किलर ना लेनी पड़े। So that was 1 month, and after like working out for 6-7 months in January, this was my reaction when I got my period. My symptoms have significantly improved compared to when I got my first period after working out. मुझे एक तो पता नहीं चलता है कि मेरा पीरियड कब आएगा बिकॉज उससे एक दिन पहले कोई PMS, मूड स्विंग्स, झगड़े, लोगों से स्नैप करना, कुछ नहीं हो रहा है। आई एम नॉट ब्लोटेड, आई एम नॉट
फूला हुआ नहीं फील करती. मेरे पहले से फेशियल हेयर जो पीसीओडी का एक सिम्टम होता है वो कम हो गए हैं. देयर आर सो मेनी थिंग एंड इवन द पेन इज़ बेटर. इट्स क्योरेबल विद मेफ्टाल. पहले मैं एक और दवाई लेती थी जो कि आई थिंक बहुत जगह बैंड भी है, बट दैट वॉज द वन दवाई जो मेरे पे काम करती थी. मेफ्टाल मेरे पे घंटों घंटों तक काम नहीं करती थी. एंड अब मैं थोड़ा मेफ्टाल पे आ गई हूँ. एंड माई गोल इज़ दैट नेक्स्ट या नेक्स्ट टू नेक्स्ट पीरियड में मैं वो भी बंद कर दूंगी. सो आई एम वेरी वेरी, आई कैन सी इट, आई एम वेरी क्लोज टू दैट गोल कि मुझे पेन किलर ना लेनी पड़े. एंड पहले मैं सेकंड डे भी पेन किलर लेती थी. अब मुझे सेकंड डे बिल्कुल पिछले 3 पीरियड से ज़रूरत नहीं पड़ रही है. आई जस्ट नीड 1 पेन किलर compared to like when I used to get 3 painkillers, and now I am very close to not eating just 1 painkiller also. So periods are very very manageable in January 2026. That's all thanks to जो मेरे को अगस्त में जो एक reality check मिला, and उसके बाद I did the same thing over and over again and did not change even a bit. And even I feel like मैं बोल रही हूँ ना कि सितंबर अक्टूबर नवंबर ये मेरे बेस्ट मंथ्स थे. इवन अक्टूबर के टाइम पे इतने सारे फेस्टिवल्स थे, बट मैंने अपने मुंह में एक सोन पापड़ी नहीं जाने दी है, विच वॉज वेरी वेरी फ्रूटफुल. आपका 1 साल के त्योहार जाएंगे, उसके बाद फिर आप ठीक से खा पाओगे. दैट्स व्हाट आई थॉट. लाइक दिस इज नॉट समथिंग आई एम गिविंग अप फॉर लाइफ. आई विल ईट इन मॉडरेशन, बट 1 साल दे दो अपने आप को एंड उसमें आप देख लोगे चेंज. बिकॉज आई वॉज जस्ट वे टू फोकस्ड ऑन माई प्रोग्रेस. सो लेट्स कम टू अ वेट ओवरव्यू. ऑन जून 2025 आई वॉज एट 74 kgs. जुलाई में आई वॉज एट 72 kgs. अगस्त में 70 kgs. September 68, October 66, November 64 and November में 74 से मैं 64 में आ गई and I lost 10 kgs. I cannot begin to tell you जब मैंने देखा तो मुझे कैसा फील हुआ. So I'll just let that play for you. Oh my god, you guys. My god, I just lost 10 kgs. Single most important day of 2025. It's 6:30 a.m. I freshen up and I weigh myself and oh my god, oh my freaking god. Today is 15th of November. I started on 3rd June. This journey has been so, I don't know, जब मैं शुरू का देखती हूँ एंड कुछ दिन गिनती हूँ तो मुझे लगता है कि इट वॉज सो हार्ड. जब मेरे को भूख लग रही थी इन टर्म्स ऑफ क्रेविंग्स. एंड मेरा जो पहले लाइफस्टाइल था जो मैं बिना सोचे समझे कुछ भी खा लेती थी. एंड जब इतने सारे मंथ्स और इतने सारे दिनों को एक पर्सपेक्टिव में रख के देखो तो लगा कि नहीं यार, 10 किलो लूज़ करना इतना मुश्किल भी नहीं था. इट वॉज क्वाइट ईजी in terms of you just have to show up every day. And thank God ki my parents have inculcated this habit of being a consistent person in life, whether it was studies or discipline or waking up on time. Lekin I don't know. I feel like I cried when I lost 1 kg, but 10 kgs में it feels surreal because this is something जो मैंने सोचा था पता नहीं मैं कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी. I'm still far away from my goal weight, which is according to my height and everything it should be 58, and I was at 74. Now I'm at 64. 4, 5, 6 more kgs to go. My god. But it happened, you guys, it happened. I lost 10 kgs in June, July, August, September, October, November. 6 months and a few more days. Damn. Fuck. Okay, and then after that, दिसंबर में 62 kgs एंड नवंबर में फाइनली 61 kgs. एंड अभी भी मैं 61 पे हूँ. मेरा उसके बाद से 60 जैन में 60 नहीं हुआ है बिकॉज मैं न्यू ईयर में थोड़ा बहुत इधर उधर खा रही थी. अब मैंने डाइट अपनी फिर से वही ट्रैक पे ले आई हूँ, बट मैं आई एम टेकिंग इट स्लो. ऑफ माई स्टबन विसरल फैट आई कैन फील इज गॉन. सबक्यूटेनियस फैट इज गॉन. मेरा इंच लॉस हैज बिन इनक्रेडिबल. लाइक ठीक है 13 kg वेट तो कम हुआ है, बट द इंच लॉस आई कैन सी the body, I can see, I can feel how the clothes fit me. Everything is so much better. My BMI is normal. My visceral fat range is normal, and that is just what I wanted out of 2025. So guys, that is what all I had for you in terms of my weight loss or healthy journey. But
this is the most important part of the video because I'm going to tell you what worked, how it works, and what did not work out for me. And I think this is the kind of conversation that will definitely help people. I'm not a doctor, I am not an expert, I'm not a personal trainer, I'm not a nutritionist. जो भी मैं अब बोलने वाली हूँ is based out of what has worked on me after trying to lose weight for ages. So a lot of people ask me कि weight loss में हमको सबसे ज़्यादा किस चीज़ पे concentrate करना चाहिए. And when a lot of people DM me also, they tell me कि हम अपने macros कितने कैसे measure करें, या फिर मैं इतने ज़्यादा, मैं 10,000 में मैं 20,000 steps a day walk करती हूँ, but मेरा weight loss हो नहीं रहा है. So what is important and what is not important, and for that we need to look at weight loss pyramid. एक होता है जिसमें जो नीचे होता है सबसे बड़ा, that is the most important. Coming to जो ऊपर 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 जाता रहता है वो less important होता है. And how much is it effective during that weight loss process? So the first thing in the weight loss pyramid is calorie deficit. That is the most important thing that you need to look out for if you want to in general have fat loss. Calorie deficit for sure dictates whether you lose or gain weight. जितना आपका maintenance weight है, जैसे मैंने आपको अपना बताया था 1800 या 1600, उससे मैं ऊपर खाती मेरा weight gain हो जाता, उससे मैं थोड़ा नीचे खाती eventually मेरा weight loss हो जाता. But it is tricky because अगर आप calories कम खा रहे हो एंड नेक्स्ट जो चीज है विच इज मैक्रोज, उसका ध्यान नहीं रख रहे हो, तो आप फैट के साथ साथ मसल भी लूज करोगे. सो द वेइंग स्केल माइट टेल यू हैव लॉस्ट 5 kgs, बट इट कैन वेरी वेल हैपन दैट आपने उस 5 kgs में से 3 kgs तो अपनी मसल ही लूज की और मेन फैट वहीं का वहीं है आपके ऑर्गन्स पे. So the next thing after calorie deficit is macros. Macros means your proteins, your carbs, your fats, and it is very important to have a goal in mind. क्योंकि अगर आप calorie deficit करोगे आपकी muscles को protect करने के लिए, you need to have an apt amount of protein to protect the muscle while you are in a calorie deficit. Protein also makes you full for longer because it takes a lot of time to get digested. तो अगर 2-4 घंटे वो digest ही हो रहा है तो आपको बार बार भूख नहीं लगेगी and आप full ही feel करोगे, which in turn makes sticking to calorie deficit easier. So the next thing on the pyramid is NEAT, which is your non-exercise activity thermogenesis, जो आपका planned workout से परे, उसके other than जो आप normal movements कर रहे हो, like मैं ये जो कर रही हूँ, मैं खड़ी हूँ, मैं walk कर रही हूँ, इधर से उधर जा रही हूँ, सीढ़ी चढ़ रही हूँ, या मैं कोई hobby like paddle खेल रही हूँ, badminton, whatever it is, swimming जा रही हूँ, these are your non-workout activities, which is such a big part of fat loss. Your daily movements are your biggest calorie burners. Walking, standing, cleaning वगैरह तो मैंने बता ही दिया है. Then comes weights. Now अगर आप weight lift करोगे, it will build your muscles and it is a major contributor to recomposing your body. How मेरी body और hourglass हो गई है because मैं traps की exercise कर रही हूँ, because मैं legs and squats और ये सब कर रही हूँ. So weights are something जिससे आपका actually the way your body looks आप change कर सकते हो and you will feel stronger. And जितनी आप muscles बनाते जाओगे, मसल से आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा. सो द मोर मसल यू हैव इन योर बॉडी ना, द लेस लाइकली यू आर टू गेन वेट अगेन. जितनी मसल होगी, चाहे आप बीच में थोड़ी बदहजमी वगैरह खा लो, ये कर लो वो कर लो, क्योंकि आपका मेटाबॉलिज्म हाई है, you will not gain weight. So it's very, very, very important to have muscle. The next thing after weights is cardio. I think it's great for heart health, it's great for stamina, and क्योंकि आप 10-15 मिनट या आधा घंटा कार्डियो कर लो तो आपसे एक्स्ट्रा फ्यू कैलोरीज भी बर्न हो जाती हैं, which is helpful always in weight loss. But if you're thinking कि आपका इससे मेटाबॉलिज्म बेटर होगा, no, वेट ट्रेनिंग से ही आपका मेटाबॉलिज्म बेटर होता है. It's not as helpful as strength training. Again, for PCOS girls I would say कि अगर आपके ट्रेनर या आप खुद कहीं से देख के हाई इंटेंसिटी वर्कआउट्स कर रहे हो, बहुत ज्यादा जो स्ट्रेसफुल वर्कआउट्स होते हैं एंड्योरेंस वाले वो कर रहे हो, इट्स एक्चुअली गोना work against you because PCOS में the main thing that you have to manage is your cortisol and insulin. So अगर आप अपनी बॉडी को constantly इतनी स्ट्रेस वाली चीज़ों में डालोगे तो आपका cortisol level high होगा, and cortisol level high means कि all the fat in your body will be stored because आपकी बॉडी एक starvation, एक सर्वाइवल मोड पे चली जाती है, so it stores fat. तो आपको रिलैक्स होना एंड अच्छा फील करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज वेयर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इज बेटर. एंड कार्डियो में भी कार्डियो करो, वॉक करो, साइकिल करो, स्टेयर मास्टर ये वो करो, थोड़ी बहुत हार्ट वाली भी करनी चाहिए जिससे आपकी दिल की धड़कन हल्की सी ऊपर हो, बट डो नॉट डू एनीथिंग एक्सट्रीम. एंड बहुत ज़्यादा HIIT 3 दिन लगे हुए हैं जिम में करने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज इट विल नॉट वर्क इन योर फेवर, इट विल डू दी ऑपोजिट, स्पेशली व्हेन यू हैव PCOS. सो स्ट्रेस लेवल्स मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है इन आर केस. सो आफ्टर अ पॉइंट आई रियलाइज दैट इट डजंट मैटर हाउ मच आई एम ईटिंग, बट इट मैटर्स मोर एट व्हाट टाइम आई एम ईटिंग. मेरा सुबह 7 बजे से लेके शाम को 7 बजे तक का रूटीन होता है. उसके बाद मैं 8 बजे 9 बजे 10 बजे कुछ नहीं खा रही हूँ, मैं अपनी बॉडी को अलाउ कर रही हूँ जो खाया उसको डाइजेस्ट करने का. एंड
ठीक से डाइजेस्ट हो गया तो उसके बाद मैग्नीशियम लेके सो जाने का, बिकॉज आई डोंट वांट कि जिस टाइम मैंने खाया उसी टाइम मैं लेट गई। मैंने पहले बहुत किया, आपको एसिड रिफ्लक्स हो जाते हैं, आपका खाना ठीक से डाइजेस्ट नहीं होता, आपकी पूरी सर्केडियन रिदम खराब हो जाती है, एंड वी डोंट वांट दैट। अगर आपको अपनी बॉडी को एक एट ईज, लेस स्ट्रेसफुल सिचुएशन में लाना है, जब वो जैसे फंक्शन आप उसको कराना चाहते हो वो करे, आपको उसे स्ट्रेस से हटाना पड़ेगा। एंड स्ट्रेस से तभी हटाना पड़ेगा जब जिस टाइम पे जो होना चाहिए आपकी बॉडी में उसी टाइम पे हो। सो ईट एट द सेम टाइम, योर बॉडी शुड हैव अ रूटीन, डाइजेस्ट एट द सेम टाइम, एंड उसके बाद गिव यू बॉडी दैट स्पेस के वो सब कुछ करके रात तक आते आते थोड़ा सोने की रिलैक्स वाली पोजीशन में हो जाए। सो मैं सर्कैडियन रिदम का बहुत ज्यादा ध्यान रखती हूँ। द नेक्स्ट वन ऑन द लिस्ट इज कोर वर्कआउट्स। ना कोर वर्कआउट्स लोग बहुत ज्यादा करते हैं, मुझे बहुत लोगों ने बोला था कि अगर आप क्रंचेस और ये सब करोगे तो उससे आपका बेली फैट और ये सब लूज होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन नॉट स्पॉट रिड्यूस फैट, कि अगर आप इतना ये करके डंबल्स उठाते जाओगे तो आपकी बाजू पतली हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है ब्रो, ऐसा कुछ नहीं है। आप एक पार्ट पे फोकस करके वहां पे एकदम से एक स्लिम ट्रिम इफेक्ट नहीं ला सकते हो। इट इज एन ओवरऑल इफेक्ट। आपकी बॉडी अकॉर्डिंग टू योर जीन्स, अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन कितना कहाँ स्टोर करती है फैट, जहां पे सबसे ज्यादा करती है वो सबसे लास्ट में ही जाएगा। सो कोर वर्कआउट इज नॉट नेसेसरीली यूज्ड फॉर लाइक दोज एब्स या फिर बेली फैट वगैरह कम करने के लिए, बट कोर इज इंपॉर्टेंट फॉर योर स्टेबिलिटी, बैलेंस वगैरह मेंटेन करने के लिए। इन जनरल कोर वर्कआउट इज नाइस, बट फैट लॉस के पिरामिड में काफी ऊपर आता है, काफी लिमिटेड इसका योगदान है। आई वुडेंट से इट्स द बेस्ट थिंग जो आपको करनी चाहिए इफ यू आर कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन फैट लॉस इन जनरल। लाइक फॉर एग्जाम्पल आई वुड से कि अगर आप 1 मिनट तक क्रंचेस करते रहोगे तो आपकी 5 कैलोरीज बर्न होंगी, वेयर अगर आप 1 मिनट तक ही वॉक करोगे तो आपकी डबल कैलोरीज बर्न होंगी। सो इट डजंट एड इन कैलोरी डेफिसिट या फिर कैलोरी बर्निंग दैट मच। एंड आई थिंक लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज सप्लीमेंट्स। लाइक जो भी चीजें आपकी कैलोरी डेफिसिट में हल्का फुल्का कमी रह गई है तो आप वो सप्लीमेंट से पूरा कर सकते हो। बाय सप्लीमेंट्स आई डोंट मीन कि जो भी वाइटामिन है वो सारे पागलों की तरह लेते जाओ। कंसल्ट योर डॉक्टर। लाइक मेरे डॉक्टर, मेरे गायनेक ने इनोसिटॉल दी हुई है बिकॉज आई हैव पीसीओएस, एंड ऑल्सो रात को सोते टाइम मैं मैग्नीशियम लेती हूँ बिकॉज मेरे कॉर्टिसोल लेवल्स पहले हाई होते थे, तो उसको ब्रिंग डाउन करने में मैग्नीशियम रियली हेल्प्स एंड इट इंड्यूसेस स्लीप, इट इंड्यूसेस लाइक थोड़ा रिलैक्सेशन इन योर मसल्स एज वेल एज योर माइंड। एंड कैमोमाइल टी इज नॉट अ सप्लीमेंट, बट आप ले सकते हो अगर आप थोड़ा सा रात को अपने आप को शांत करना चाहो एंजाइटी में, इट इज वेरी हेल्पफुल। तो दीज आर द सप्लीमेंट्स आई टेक। अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन टेक योर प्रोटीन, विच एवर प्रोटीन सूट्स यू, एंड या कंसल्ट योर डॉक्टर। बट सप्लीमेंट्स थोड़े से कभी कभी आपको वाइटामिन डेफिशिएंसी होती है तो वो लेने में काम आ जाता है, एंड दैट डजंट एड एनी वेट लॉस, बट इट इज इंपॉर्टेंट। अगर थोड़े बहुत ट्विक करके यू कैन फील हेल्दियर एंड यू कैन फील दैट राइज ऑफ एनर्जी इन योर सेल्फ, तो ले लेना चाहिए। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि क्यों सारे लोग जैसे ही फिटनेस और इस सब में आते रहते हैं, वाई प्रोटीन प्रोटीन प्रोटीन, पागल कर दिया आजकल। प्रोटीन कुल्फी आ रही है, प्रोटीन दही आ रही है, प्रोटीन ये प्रोटीन वो। सो द मेन थिंग इज वाई आर पीपल who want to be healthy, या जो नया नया फिटनेस की साइड में गए हैं लाइक माई सेल्फ, या इतने सालों से करते आए हैं, why is everyone vouching for proteins and why are not nutritionists giving us protein? Like जब आप न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाते हो, मैंने जिंदगी में 3 लोगों से 3 अलग अलग न्यूट्रिशनिस्ट डाइटिशियन से डाइट ली है, एंड no one has focused on protein एक बार भी। They've always been like ये खा लो वो खा लो, अच्छा हाँ तुम्हें अगर स्टीम मोमो खाने का मन है 2 स्टीम मोमो खा लेना, ये कर लेना। एक तो इतनी, मैं बता नहीं सकती, इतनी अब्यूजिव टाइप की डाइट्स होती है जिसमें आपको लगता है आप अपने साथ क्या कर रहे हो, आपको बिल्कुल टेस्टी नहीं लगती हैं चीज़ें, आपका अंदर से ऐसे हर चीज़ की इच्छा खत्म हो जाती है, एंड देन आप अंदर से वीक भी हो रहे होते हैं। उसके बाद क्योंकि वो डाइट आप लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तक कंटिन्यू तो कर नहीं सकते बिकॉज इट्स नॉट सस्टेनेबल, तो जब भी आप वो तोड़ोगे एंड अपनी पुरानी हैबिट्स में वापस जाओगे, यू विल रियलाइज दैट आपका डाइजेशन खराब हो चुका है बिकॉज ऑफ दैट डाइट। तो अब आप बाहर का भी कुछ खा रहे हो लाइक बिफोर, बट वो आपकी बॉडी ले नहीं पा रही है, आपको लूज मोशन जल्दी हो रहे हैं, आपको एसिड रिफ्लेक्स हो रहा है, आपका पेट दर्द हो जाता है जल्दी से। सो ये सारी चीजें होती है, एंड देन आपको काफी डेफिशिएंसीज भी निकल आती हैं। आई नो वन रिलेटिव जिसको ये सब करने के बाद कॉन्स्टेंट माइग्रेन स्टार्ट हो गए हैं, एंड मेरे को भी एक बार हुआ था ऐसा। सो दीज आर द काइंड ऑफ थिंग्स जो nutritionists, I don't know what they're doing. I would really love if you are a credible good nutritionist जो प्रोटीन इनटेक पे फोकस करता है, प्लीज आप नीचे अपना रेफरेंस दें ताकि अगर किसी को आपको कांटेक्ट करना है तो कर पाए। बिकॉज जितनों के पास मैं गई हूँ, अनफॉर्चुनेटली मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस यही था कि किसी ने भी मुझे नहीं बताया कि प्रोटीन खाना है। दे यूज्ड टू गिव मी चीला, ओट्स में कोई प्रोटीन नहीं होता है। वाई वुड दे गिव मी ओट्स? वाई वुड दे आस्क मी के 2 पनीर के क्यूब्स खा लो?
उसमें मेरा पूरा प्रोटीन इंटेक कैसे होगा इवन इफ आई एम ईटिंग प्रोटीन. सो नो वन रियली फोकस्ड ऑन दैट. दे जस्ट वाज लाइक के ठीक है स्केल पे कम आएगा ना, चाहे मसल लॉस हुआ चाहे फैट लॉस हुआ, इट्स वन एंड द सेम थिंग. सो स्केल पे बस वेट कम आएगा, हमें रिजल्ट मिलेगा, पैसे लेते जाओ, पतला हो जाएगा बंदा, पर अंदर से जो खोखला हो रहा है उसका किसी ने नहीं देखा. सो आई वुड लाइक टू टेल यू, जो मैंने अपनी रिसर्च में बिकॉज ऑफ माई मॉम एंड बिकॉज ऑफ ऑल दीज पॉडकास्ट एंड इवन डिस्कसिंग इट विद 2 मेन डॉक्टर्स इन माई लाइफ राइट नाउ, आई वॉन्ट टू टेल यू गाइज कि प्रोटीन से मेटाबॉलिज्म इंक्रीज होता है. प्रोटीन क्यों इंपॉर्टेंट है इज व्हेन जब आप स्पेशली स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हो, बहुत ज्यादा वेट उठा रहे हो, यू नो बॉडी सोर होती है, मसल सोर होती है, दैट इज बिकॉज आपके अंदर मसल्स में माइक्रो टीयर्स हो रहे हैं. एंड अगर आपकी बॉडी में कोई चीज में टीयर आया है, कुछ फटा है, तो वहां ब्लड विल रश टू रिपेयर इट, यू नो, एंड वो रिपेयर में जो प्रोटीन आपने खाया वो काम आएगा. तो वो ब्लड आके प्रोटीन को लाएगा, यहाँ पे सब फिक्स करेगा, एंड वंस इट इज फिक्स्ड अ थिकर लेयर ऑफ मसल इज फॉर्म, जिससे आप और ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगे, इससे और ज्यादा आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा, इससे और ज्यादा थिक लेयर आएगी. एंड इन टर्न जब आप करते जाओगे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, तो आपकी एक स्कल्प्टेड बॉडी होगी, आपकी एक यू नो टाइटर बॉडी होगी, लूज स्किन नहीं होगी. एंड दैट इज वाई प्रोटीन इज सो इंपॉर्टेंट इन फैट लॉस एज वेल, क्योंकि अगर आपका सिर्फ फैट लॉस हो जाएगा या साथ साथ मसल लॉस भी होगा, आपकी बॉडी लूज सी हो जाएगी. एंड अगर आप साथ में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते रहोगे, इट विल बी मच टाइटर कंपेयर टू अ बॉडी जो फैट लॉस कर रही है विदाउट कीपिंग प्रोटीन इनटेक इन माइंड. एंड ऑल्सो आई कैन नॉट स्ट्रेस दिस इनफ, वेदर यूर अ मैन और अ वुमन, आपका आफ्टर 30s यू नो पर डेकेड आपके 3 to 8% मसल लूज होता है. दैट ओनली कीप्स ऑन इंक्रीजिंग आफ्टर 40 एंड आफ्टर 60. तो भाई, तो इसलिए पेरेंट्स को भी फोकस करना चाहिए, यू नो, मुझे पर्सनली लगता है प्रोटीन इनटेक पे, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट. मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ, मैं अपने एक्सपीरियंस से ही बोल रही हूँ गाइज. द नेक्स्ट थिंग दैट पीपल आस्क मी इज हाउ टू बी कंसिस्टेंट, एंड द ओनली थिंग इज दैट डोंट ट्रीट इट एज स्मॉल पीरियड इन योर लाइफ. आप सुबह उठते हो, ब्रेकफास्ट करते हो, नहाते हो, धोते हो, वैसे ही एक्सरसाइज आपके एक रूटीन का पार्ट है. एंड इवन इफ आपके बीच में कुछ बिजी डेज आ रहे हैं, कुछ आ रहे हैं, जस्ट स्क्वीज इन टाइम बीच में अपने लिए, बिकॉज इट इज अ डेट विद योर सेल्फ एट द एंड ऑफ द डे. दिस इज द ओनली प्लेस जहां पे आपका माइंड किसी और चीज के बारे में नहीं सोचेगा. इट्स जस्ट फोकसिंग ऑन ब्रेथ वर्क, इट्स फोकसिंग ऑन मेरा पॉस्चर सही हो, फॉर्म सही हो, इट्स फोकसिंग ऑन अगर मैं ऐसे करके पुल एक्सरसाइज कर रही हूँ तो मेरी बैक में जो मसल है वहां पे वो चीज मेरे को फील हो रही है कि नहीं हो रही है, कितनी इंटेंसिटी से मुझे खींचना चाहिए, कितनी इंटेंसिटी से मुझे छोड़ना चाहिए. all of these things consume your mind and that is the best possible thing. आपका अपने साथ एक डेट होती है एंड क्योंकि एक्सरसाइज के बाद यू नो सेरोटोनिन और डोपामिन रिलीज होता है, इट जस्ट रियली रेगुलेट्स योर हार्मोन्स एंड आप उसके बाद खुश फील करते हो. देयर हैव बीन सो मेनी डेज जब मेरा मूड ठीक नहीं था बट मैं स्टिल आई शोड अप टू द जिम के नहीं यार नहीं, इस मूड नहीं खराब करते हैं, एक और दिन जिम का नहीं खराब करते हैं, एंड आई केम आउट फीलिंग हैप्पियर. एंड आधा तो मैं भूल ही गई थी कि मैं क्यों गुस्सा थी या क्यों मेरा मूड खराब था, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम इट वाज लाइक यार छोटी सी बात थी. तो ऐसे आपका पर्सपेक्टिव यू नो एक 1 hour सेशन में बिल्कुल चेंज हो जाता है. जितना जिस दिन दे सकते हो अपना 20% देना 20% दे के आओ, जिस दिन 100% 90% फील होता है उतना ही दे के आओ. नो वन इज एक्सपेक्टिंग कि आज तो पूरा यू नो रोज ही जोर शोर लगा के करना है. जितना कर सकते हो उतना करो, पर करो जरूर. 3 days a week is more than enough and then you can increase it to 4 days a week or 5 days a week depending on आपको कितना पसंद आता है वर्कआउट करना. ऑल्सो लॉट ऑफ पीपल टेल मी कि भाई इतना ज्यादा जिम करोगी तो तुम बल्की हो जाओगी, तुम चौड़ी हो जाओगी, तुम ऐसे यू नो मर्दाना हो जाओगी एंड ऑल ऑफ दैट. फर्स्ट ऑफ ऑल आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज फेमिनिन, व्हाट इज मर्दाना, बट आई डू गेट द पॉइंट. सोसाइटी स्टैंडर्ड से कि आप लोग क्या कहना चाह रहे हो, जो भी लोग मुझे एक सर्टन सेक्शन ऑफ सोसाइटी या मेरी ऑडियंस बोल रही है. एंड लेट मी टेल यू इट्स वेरी हार्ड फॉर women in general to build that kind of you know bulk in your body. It is very hard unless you're taking some performance enhancing you know supplements or something. आपका वो वाला बल्क तो नहीं आने वाला है because लड़कियों में you know 25% more fat होता है especially lower side पे compared to men because they have to bear children, and लड़कियों में 25% less muscle भी होता है. लड़कों में upper body और ये सब में ज़्यादा muscle होता है and they also have testosterone जो कि बहुत help करता है strength training में उनकी muscles build करने में. लड़कियों में testosterone की जो amount होती है वो कम होती है but it is very good for your हार्मोन्स. स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से आपका जो प्रोजेस्टेरॉन है, जो एस्ट्रोजन है, वो लिमिट में आता है. इवन इफ आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस हो रहा हो उसको कंट्रोल एंड कर्ब करने में बहुत हेल्प करता है. सो इन फायदों के अलावा आई जस्ट वांट टू टेल यू, अगर आप कितनी भी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर लो, अगर आप 100 ग्राम प्रोटीन रोज खा लो, आप बल्कि नहीं होगे. इट विल टेक अ डिफरेंट अमाउंट ऑफ खुराक, अ डिफरेंट अमाउंट ऑफ डाइट, so many supplements, एक्सटर्नल चीजें जो आपको बॉडी में डालनी होंगी, and so much more exercise in order to become that bulky like a man. So I don't believe in all this. मैंने किया है, मुझे पता है कि इससे
I've only shrunk only यार, लेकिन मेरा जो फैट लॉस हुआ है और जो मेरी बॉडी रिकम्पोजिशन हुई है, व्हेन आई लुक एट माई बॉडी इट्स अ डिफरेंट पर्सन दैट आई हैव नेवर सीन. लाइक बचपन से लेके अब तक आई हैव नेवर सीन दिस बॉडी ऑन माई सेल्फ. समटाइम्स आई डोंट इवन बिलीव कि ये मेरी बॉडी है. सो आई कैन वाउच कि आप नहीं होगे चौड़े, बट इन ऑर्डर टू बिल्ड मसल, इन ऑर्डर टू हैव दैट स्कल्प्टेड बॉडी, यू हैव टू लिफ्ट वेट्स जितना लड़के उठाते हैं. यू कैन नॉट स्टिक टू योर 2 kgs, यू कैन नॉट स्टिक टू योर 3-4 kgs. कभी ना कभी बढ़ना पड़ेगा. दिस अ फुटेज ऑफ मी जब मैंने स्टार्ट किया था. आई वॉज ट्रेनिंग विद 2.5 to 4 kgs, उससे ज़्यादा नहीं होता था और उसमें भी मेरी हालत टाइट हो जाती थी. एंड कट टू 6-7 months लेटर मैं 10 kgs, इवन 12.5 kgs भी उठा रही हूँ. दैट इज बिकॉज आई वॉन्ट कि मेरी मसल बने, और वो नहीं बन रही है भाई. मैं अभी इतना भी कर रही हूँ तो. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. आई एम नॉट स्टिल लिफ्टिंग लाइक अ मैन. मैंने देखा मेरे जिम में कितना चेस्ट प्रेस करते हैं लड़के. सो आई एम स्टिल नॉट देयर, बट जस्ट डोंट स्टिक टू योर 4 kgs के हाँ हम तो हल्का सा लाइट वर्कआउट करेंगे, उससे मसल नहीं बनने वाली है भाई. अब मैंने आपको फैट लॉस पिरामिड के बारे में तो बता दिया, बट आई वुड स्टिल लाइक टू रीइटरेट दैट 80% ऑफ व्हाट यू ईट contributes to your fat loss and 20% ही सिर्फ एक्सरसाइज है. एक्सरसाइज आपको लगता होगा कि मैंने 2 घंटे जिम में इतना कुछ कर लिया. आप 100, 200, 300 कैलोरीज ही बर्न करके आ रहे हो, 300 से कम ही बर्न करके आ रहे हो 2 घंटे में. एंड 300 कैलोरी खाने में इतना टाइम नहीं लगता. वो जो स्टारबक्स में चॉकलेट बनाना चिप केक मिलता है ना, वो ही 400 कैलोरीज या 500 कैलोरीज है. सो बी माइंडफुल अबाउट वॉट यूर पुटिंग इन साइड योर माउथ. एंड साथ में ट्रीट एक्सरसाइज एज एन एड कि ये थोड़ी सी हेल्प कर देगी मेरी जल्दी करने में इसको. When you load up your body with toxins, it just doesn't have to be alcohol. It can be microplastics. It can be जो बहुत ज़्यादा केमिकल स्किन केयर प्रोडक्ट्स या मेकअप हम यूज़ करते हैं, बाहर आप पॉल्यूशन में जाते हो, ऑल ऑफ दैट इज कमिंग इन साइड योर बॉडी. एंड सबसे ज़्यादा चीज़ इसमें कॉन्ट्रीब्यूटर होती है स्ट्रेस. अगर आप स्ट्रेस लो, अगर आप परेशान रहो, रोते रहो, या एक डार्क क्लाउडी स्टेट ऑफ माइंड में आप हो, राइट, अगर आप स्ट्रेस में हो इन जनरल, सो नहीं रहे हो, स्लीप साइकिल ठीक नहीं है, ऑल ऑफ दिस इज वेरी हार्मफुल फॉर योर बॉडी. एंड जब आपकी बॉडी इतना ज़्यादा ओवरलोडेड होती है ना स्ट्रेस पे, दैट ओवरलोड ऑफ स्ट्रेस एंड टॉक्सिन इज सेंट टू योर लिवर. And when the liver is not able to process it, it takes it as a signal that your body is in stress, and वो सब कुछ फैट सेल्स में जाके स्टोर कर देती है. इट गोज इनटू प्रोटेक्शन मोड, एंड वो जो सारे टॉक्सिन्स हैं वो फैट सेल्स में जाके स्टोर हो रहे हैं. सो वो फिर से आपकी बॉडी स्टार्वेशन स्ट्रेसफुल मोड में आ गई है. एंड बिकॉज ऑफ दैट कॉर्टिसोल राइज, बिकॉज ऑफ दैट स्ट्रेस राइज, उससे आपका जहां पे भी फैट सबसे ज्यादा स्टोर होता है, फॉर मी इट वॉज लोअर बेली, फॉर मी इट वॉज दिस आर्म फैट, वो वहां जाके टॉक्सिन स्टोर हो रहा था. एंड ऑल्सो अराउंड माई ऑर्गन्स लाइक लिवर के अराउंड. So that's what happens, and that's why the scale is not moving, because you're constantly in stress, you're constantly overstimulated by toxins. And जब तक वो चीज़ें लिमिट नहीं होगी, like I have simplified my skincare routine so much. मोस्ट ऑफ द टाइम आपने मेरे सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में देखा होगा मैंने मेकअप करके भी वीडियो नहीं किया, बहुत कम मिनिमल मेकअप लगाया है. इनफैक्ट आज का दिन है मैं थोड़ी और ज़्यादा डेवलप हुई हूँ, बिकॉज दिस वॉज सच अ मोन्यूमेंटल वीडियो. बट मैं I have limited so much, I've cut off so much from everything, ताकि मैं easy breezy feel कर पाऊँ life में, and my body is not under any kind of stress. So the best way to keep your organs safe is number 1, स्लीप ऑन टाइम. आपका स्लीप साइकिल जो भी है, जितना आपके लिए रिक्वायर्ड है, आपको रिलैक्स फील होना चाहिए. आधी चीज तो आप स्लीप से ही अचीव कर लोगे अगर आप टाइम पे सोगे, टाइम पे उठोगे. एंड व्हेन यू वेक अप यू आर नॉट फीलिंग स्लगिश, यू आर नॉट फीलिंग चिड़चिड़ा, एंड आप एक फ्रेश माइंड से उठ रहे हो. इवेंचुअली दैट हैपन्स, इट विल टेक टाइम बट इट डज हैपन. सो स्लीप से बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी. वेट लॉस में भी, आपके फैट स्टोर में भी. द नेक्स्ट थिंग इज टू फिक्स योर डाइजेशन, फिक्स योर गट. सो खीरा खाने से सिर्फ फाइबर नहीं मिलेगा. इट्स नॉट द एम्पल अमाउंट ऑफ फाइबर, स्पेशली अगर आप प्रोटीन ज्यादा ले रहे हो तो आपको फाइबर भी अच्छा खासा लेना पड़ेगा. सो फ्लैक्स सीड्स हो गए, इसबगोल हो गया, काफी सारे जो ये सनफ्लावर या पम्पकिन सीड्स होते हैं, इन सब में ज्यादा फाइबर होता है. कुछ फ्रूट्स में भी ज्यादा फाइबर होता है, ड्रैगन फ्रूट में अच्छा खासा फाइबर होता है. तो ये सारी चीजें इंक्लूड करना अपनी डाइट में, रादर देन जस्ट ईटिंग अ क्यूकम्बर. दैट इज लाइक 2 प्याज ले लिए सैलड के नाम पे, नहीं होगा भाई. लेटस लेने से नहीं होगा. आपको रियल फाइबर सोर्सेस सर्च करने पड़ेंगे, रिसर्च ऑन इट एंड देन ईट दैट. आई एम टेलिंग यू, देन ओनली योर कैलोरी डेफिसिट विल वर्क व्हेन योर इनसाइड्स आर क्लीन एंड योर बॉडी इज फीलिंग सेफ. तभी it will be able to let go of the toxins and all the fat. So calories change your weight, macros change the way you look, but micros change the way you feel. Micros change your life.
सो आई वुड से कि कैलोरीज, क्योंकि आप कैलोरी डेफिसिट में हो, दे विल डेफिनेटली चेंज योर वेट, यू नो, अगर आप डेफिसिट में खाओगे. मैक्रोज विल चेंज द वे यू लुक, बिकॉज अगर आप प्रोटीन इंटेक ले रहे हो, अच्छा कार्ब्स एंड यू नो ये सब का इंटेक ले रहे हो, एंड यू आर वर्किंग आउट इन द जिम, सो द वे यू लुक, पूरी बॉडी रिकॉम्पोजिशन बदल जाएगी. Now micros, why micros are most important and why they will change the way you feel and your whole life is because ये जो लोग कहते थे ना कि vitamins and minerals ये बहुत important होते हैं, they are truly very important. So do not skip your fruits, do not skip all the veggies, do not skip dairy. अगर आप intolerant हो वो अलग बात है. Do not skip fish and ये सारी जो ओमेगाज होते हैं, vitamins होते हैं, minerals होते हैं, बहुत important होते हैं for your mood. अगर आप ये सिर्फ हटा के सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन नहीं खाओगे and सिर्फ कैलोरी डेफिसिट करोगे, it will, I'm telling you, be a miserable time. Like okay, you will feel full, but यू नो ओके क्रेविंग्स भी नहीं हो शायद, लेकिन यू विल फील कमजोर, यू विल फील वेरी डीमोटिवेटेड एंड लाइफ का कुछ रस नहीं रह जाएगा. सो आई फील लाइक एक बैलेंस बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज वाई माइक्रोज भी ऐड करना बहुत इंपॉर्टेंट है डाइट में. ईट योर वेजीज बिकॉज दैट इज द मोस्ट सस्टेनेबल थिंग. अगर आप तीनों चीजों पे ध्यान देके चलोगे, दिस इज हाउ क्रेविंग्स वर्क. मैं पूरा फंक्शन बता रही हूँ. व्हेन यू लोड योर बॉडी अप विद कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रीडोमिनेंट कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स, तो आपके ब्लड में शुगर बढ़ेगा, शुगर का स्पाइक आएगा. बॉडी ऐसे वर्क करती है कि जैसे ही आपके ब्लड में बहुत ज़्यादा शुगर आने लगती है, तो पैनक्रियास को मिलता है एक सिग्नल कि हमें इंसुलिन रिलीज करना है. जैसे वो इंसुलिन रिलीज करती है, उसका इफेक्ट बॉडी पे होता है कि शुगर नीचे आ जाती है आपकी ब्लड स्ट्रीम पे. तो उसने ढेर सारा इंसुलिन पैनक्रियास ने रिलीज करना शुरू किया, उस इंसुलिन की वजह से नीचे आ गया. बट वो पीक इतनी हाई हो गई थी और एकदम से ड्रॉप हो गया, तो वो शुगर क्रैश आपको फील होता है. वो जो शुगर क्रैश आपको फील होता है, दैट इज योर क्रेविंग. बिकॉज उसके बाद जब वो एकदम से लो हो जाएगी शुगर, यू विल फील लाइक मुझे कुछ मीठा खाना है, मुझे और ज्यादा कार्ब्स की जरूरत है. यू विल ट्राई टू लोड अप ऑन कार्ब्स. आपकी बॉडी फिर से उस स्ट्रेस वाले मोड में चली जाएगी एंड ये एक विशियस साइकिल है जो रिपीट होता जाएगा कि आपने कुछ पहले बर्गर खा लिया, ऊपर नीचे, उसके बाद ब्राउनी खा ली, फिर उसके बाद कुछ खा लिया, फिर उसके बाद कुछ खा लिया. एंड दैट कैन ओनली, ये जो साइकिल है ये तभी ब्रेक होगा जब आप प्रोटीन डोमिनेंट डाइट्स लेना स्टार्ट करोगे. एंड प्रोटीन लेने से वो क्रेविंग्स धीरे 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 खत्म होगी, बिकॉज ना प्रोटीन आपका शुगर स्पाइक करेगा, वो थोड़ा सा ऐसे ही रहने देगा. एंड जब तक ये ऐसे रहेगा तब तक वो प्रोटीन डाइजेस्ट भी हो रहा है एंड 2 to 3 आवर्स के बाद आपको ऐसी कोई भूख नहीं लगेगी, बिकॉज आपका शुगर ना बहुत ऊपर गया ना बहुत ज्यादा नीचे गया, पैनक्रियास पे भी इफेक्ट नहीं पड़ा है, इंसुलिन भी बहुत ज्यादा नहीं क्रिएट हुआ. बिकॉज जब बहुत ज्यादा बॉडी रैपिडली सालों साल ये सिस्टम करती रहती है, तो आपको ऐसे गंदे लाइफस्टाइल डिजीजेस होते हैं ना, टाइप 2 डायबिटीज हो जाता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है, पीसीओएस वगैरह हो जाता है, एंड सो मेनी बैड थिंग्स जिनको, जो रिवर्सेबल नहीं है यार. वो बहुत मेहनत करोगे तब भी आप लाइफ में उसको मैनेज ही कर पाओगे. सो जिसके पास टाइम है अभी संभल जाओ, बिकॉज दिस इज समथिंग दैट हैज कंप्लीटली चेंज्ड माई लाइफ. दिस इज वन थिंग दैट हैज कंप्लीटली चेंज्ड माई आउटलुक. एंड मेरे को यही लगता था कि यार मुझे तो इतनी क्रेविंग्स होती है, मुझे पता है कि मुझे क्या खाना है. आई ऑलवेज नो व्हाट आई वांट टू हैव, बिकॉज मुझे एक पर्टिकुलर टेस्ट, एक पर्टिकुलर चीज की क्रेविंग हो रही है. एंड वो अब मेरी जो फूड नॉइज है वो बिल्कुल बंद हो गई है. कुछ मेरे को ऐसे सोचता ही नहीं है कि अब नेक्स्ट क्या खाना है, बिकॉज मेरी शुगर डाउन हो रही है. वंस आई अंडरस्टूड हाउ माई बॉडी इज वर्किंग. बिकॉज अगर आप एक एवरेज इंडियन मील देखोगे, इतनी दाल होगी कटोरी में, सब्जी होगी, आलू गोभी होगा, भिंडी होगी, व्हाटएवर, एंड 2 या 3 चपाती होगी, उसमें भी घी बटर लगाया होगा. इट इज अ कार्ब फिल्ड मील. इट इज 80% to 90% कार्ब फिल्ड मील एंड इसमें प्रोटीन बहुत कम है. एड सम टोफू इन इट, एड सम पनीर इन इट, एड सम एग्स इन इट, एड इसके साथ आप एक प्रोटीन शेक ले लो यार, वे प्रोटीन का 1 स्कूप, तो भी बैलेंस हो जाएगा. इसके साथ अगर आपने 1 ग्लास जो ग्रीक योगर्ट होती है उसकी स्मूदी ले ली, उससे वो बैलेंस हो जाएगा. सो इट शुड ऑलवेज हैव सम अमाउंट ऑफ प्रोटीन एंड उससे आपका वो स्पाइक एंड वो जो क्रेविंग वाला जो पूरा सिस्टम अभी मैंने समझाया वो नहीं होगा. बिकॉज बिलीव इट और नॉट, मेरे पास बहुत लोग ऐसे आते हैं कि हम तो घर का खाना ही खाते हैं फिर भी हमारा वेट लूज नहीं हो रहा है. द प्रॉब्लम इज नॉट ईटिंग घर का खाना, द प्रॉब्लम इज घर के खाने में आप क्या खा रहे हो. वो तो देखो, आपको प्रोटीन उसमें डालना जरूरी है. घर के खाने में भी अगर कार्ब्स है, बाहर के खाने में थोड़ा कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होंगे, बट खा तो आप कार्ब्स ही रहे हो ना, तो क्रेविंग तो होगी. ओके, इन कंक्लूजन आई वुड लाइक टू से दैट दिस इज द फर्स्ट टाइम आई डिड नॉट टेक अ डाइट फ्रॉम एनी न्यूट्रिशनिस्ट और एनीवन, एंड देयर वर अ लॉट ऑफ पीपल, यू नो, जब उन्होंने देखा, मैंने जब शुरू में तो मैंने शेयर ही नहीं किया, मैं सिर्फ क्लोज फ्रेंड्स अपने इंस्टाग्राम में डालती थी, बट जब मैंने धीरे धीरे शुरू किया एंड अ लॉट ऑफ यू गाइज स्टार्टेड सीइंग रिजल्ट्स एंड हाउ आई एम लुकिंग, व्हाट आई एम डूइंग, एंड मैं
कैसे रोज जिम जा रही हूँ, कर रही हूँ, देयर वर अ लॉट ऑफ न्यूट्रिशनिस्ट, देयर वर अ लॉट ऑफ डाइटिशियंस, देयर वर अ लॉट ऑफ इवन पर्सनल ट्रेनर्स दैट रीच्ड आउट ओवर मेल्स, ओवर डीएम्स, ओवर, और मैंने किसी का कोई रिप्लाई नहीं किया, जिस मेरे को ना नहीं बोलना था, हाँ नहीं बोलना था, आई जस्ट वांटेड टू इग्नोर बिकॉज देयर वर अ लॉट ऑफ पीपल जो मेरी इस जर्नी का क्रेडिट लेना चाहते थे एंड बीच में मेरे अपने आप को इंक्लूड करा के देवर लाइक कि आप ये पोस्ट कर दोगे तो हम आपको इतने पैसे दे देंगे, या फिर आपको हम अपनी ये सर्विसेज फ्री में दे देंगे, एंड देन यू नो आप जस्ट हमको शाउट आउट दे दो, एंड अ लॉट ऑफ पीपल वांट टू बी फीचर्ड ऑन द स्टोरीज, बट दिस इज समथिंग दैट इज सो precious to me, and this relationship right here, you and me, is so precious to me that मैं इसको एक भी % बूंद डाल के ना गंदा नहीं करना चाहती थी। मैं इसमें कोई छल कपट झूठ, इवन इफ समवन इज ऑफरिंग मी मनी, स्पॉन्सरशिप और वट एवर देयर सर्विसेज आर, मैं नहीं चाहती थी कि मैं एक मतलब इतने सारे लोग मेरे को लेके आए मेरे पास अपनी टीज जिससे फैट लॉस टी हो जाती है, ये प्रमोट कर दो, यू नो, बट आई डिड नॉट टेक दैट, सो आई कैन नॉट डिसीड यू गाइज, एंड मैं आप लोगों को बिल्कुल इस चीज़ में यू नो स्कैम नहीं करना चाहती हूँ। सो जो मेरे लिए वर्क किया है, दैट इज़ वाई आई वॉन्टेड कि इस वीडियो में मेरा कोई स्पॉन्सर ना, एंड ट्रस्ट मी देयर वर हंड्रेड्स ऑफ पीपल जो मेरी ये वीडियो ईजिली स्पॉन्सर कर देते, बट मुझे नहीं ये चीज़ चाहिए थी, एंड मैं कोई महान नहीं बन रही हूँ, दिस इज जस्ट माई नॉर्मल रेगुलर जॉब एज एन इन्फ्लुएंसर। एवरी इन्फ्लुएंसर शुड बी डूइंग दिस। अगर वो अपनी कोई जर्नी शेयर करते हैं उनको ट्रूथफुली करनी चाहिए, रादर देन ट्राइंग टू इंक्लूड अ स्पॉन्सरशिप जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट, जो उन्होंने किया भी नहीं है, बिकॉज वेट लॉस एंड बॉडी इमेज इशूज एंड ईटिंग डिसऑर्डर्स आर समथिंग जो कि इतना सारा वर्ल्ड एंड स्पेशली यंगर जनरेशन उससे इतना ज़्यादा जूझ रही है ना, तो उस चीज़ का फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। आपको नॉर्मली जो आपको पता है उस वे से एजुकेट करना चाहिए, विदाउट इंड्यूसिंग फियर या विदाउट प्रमोटिंग दी स्कैमी प्रोडक्ट्स, जो कि बंदे का पैसा खर्च हो जाएगा, इतनी ज़्यादा उसकी उम्मीदें बढ़ेंगी एंड वो कुछ घंटा नहीं करेगी। सो आई डिड नॉट वॉन्ट टू स्पॉन्सर दिस वीडियो, एंड आई फील वेरी रिलीव्ड एंड हैप्पी अबाउट इट फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ के यू नो नहीं मिले पैसे, बट जो प्यार मिल रहा है एंड जो easily एंड खुल के मैं चीज़ें अपनी शेयर कर पा रही हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो येस, आई डिड नॉट टेक एनी न्यूट्रिशनिस्ट डाइट एनीथिंग, एंड आई फिगर्ड इट आउट ऑन माई ओन। दैट्स वाई इवेंचुअली माई बॉडी बिकेम रिलैक्स्ड, इट केम आउट ऑफ सर्वाइवल मोड। इवन इफ अगर आप मेरा आज पास से चेहरा देखोगे, यहाँ पे आपको कोई फुलावट या जो पहले एक वो दिखती थी वो नहीं है। माई फेस इज बेटर देन बिफोर, एंड वो जो एक आपका पीसीओएस में मून फेस हो जाता है ना, गोल सा, वो नहीं है। अब मेरा पॉइंटेड चिन वापस आ गई है, मेरा यहाँ का फैट पहले से कम हो गया है। आई डू हैव लाइक collar bones right now, and these are the kind of things that make me feel so good. I have shoulders, पहले मेरा ऐसे गोल लुक होता था, and my organs, most importantly my organs don't have fat on them, like less fat I hope, but yeah, that's why my body became relaxed. It came out of survival mode, it came out of all the stress it was going through. अगर साल के 365 days हैं, उसमें से आप 200 दिन भी अपने साथ सही रहे, and उसके अलावा जितने दिन बचे हैं you just indulged a bit, overall you will be a healthier person. Overall you will feel like you've done something for yourself, and वो जो proud feeling आपको आती है ना अपने लिए कुछ करके, वो किसी और के लिए करके नहीं आएगी. I'm telling you this because I know how many people are suffering from health issues. The kind of attention, the kind of queries, the kind of conversation, healthy happy conversation I've gotten out of sharing कि मैं क्या कर रही हूँ, and okay I'm on this path right now, वो मुझे कभी किसी और चीज़ से ऐसी इंटेंसिटी से नहीं मिला है. सो आई नो वॉट इट मीन्स टू यू गाइज. आई नो द इम्पैक्ट, आई नो द सीरियसनेस एंड वैल्यू ऑफ शेयरिंग हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन एंड हैविंग अ गुड डायलॉग. अगर आप चाह रहे हो कोई शॉर्टकट के किस न्यूट्रिशनिस्ट को कंसल्ट किया मैं भी कर लूँ, एक ट्रेनर है उसी के पास जाके कर लेते हैं, तो नहीं हो पाएगा. आपको अपनी पर्सनल ट्रेनिंग में भी खुद सीखना पड़ेगा कि 2, 4, 6 मंथ बाद जब आप छोड़ो तो आपको खुद वो वर्कआउट करना आता हो एंड आप एक मेंटेन कर सको बेस लाइन. एंड ऑल्सो न्यूट्रिशन में भी आपको खुद समझना पड़ेगा कि आप क्या खा रहे हो, आपकी बॉडी को क्या लग रहा है, क्या चीज़ वर्क कर रही है, ताकि मतलब आप सर्विसेज के लिए पूरी लाइफ तो पे नहीं कर सकते ना. तो जब आप कर रहे हो या तो मेक श्योर कि यू आर लर्निंग फ्रॉम इट एंड देन यू कंटिन्यू इट एंड इट वर्क्स फॉर यू, इट्स एक्चुअली सस्टेनेबल, या फिर फिगर आउट योर ओन वेज. एंड दिस वीडियो इज काइंड ऑफ एन अटेम्प्ट to make you figure out your own way. बाकी कोई भी दिक्कत हो, कोई भी query हो, आप नीचे कर देना. And I hope this video helped you out. I have more ideas regarding my content. I'm more friendly. I have more confidence. I speak up to people now. I have this, मेरी एक body language change हो गया. More stature. I love myself. ये नहीं है कि I like myself. I literally love myself so much that मुझे लगता है मेरे से better और कोई हो नहीं सकता दुनिया में. And that's the kind of confidence that, taking care of yourself gives you. Not even exercise. When you take care of yourself now, that is when you're actually loving yourself, and वो तभी आएगा. That's an ongoing practice of self love, and
या अब मुझे आदत लग चुकी है अपने आप से प्यार करने की। अभी हम जनवरी में हैं, 1 जनवरी तो नहीं है, थोड़ा लेट हो गया, बट जब भी देर आए दुरुस्त आए, अगर आपको स्टार्ट करनी है, नाउ इज द राइट टाइम, मेक दैट रेजोल्यूशन, do everything possible, take out notes from this video. I am there to help you guys, and if you need any kind of professional help, there are professionals जो मौजूद हैं इंडिया में. So all the best अगर आप ये जर्नी स्टार्ट कर रहे हो तो, एंड अगर आप मिड जर्नी हो, आई विश यू द बेस्ट एंड मोर मोटिवेशन कि आप अपने गोल तक पहुंच पाओ. विश मी मोटिवेशन एज वेल बिकॉज आई एम नॉट डन येट. आई हैव अ लॉन्ग वे टू गो स्टिल, बट आई विल डू इट इन अ वेरी स्लो एंड स्टेडी पेस विदाउट बीइंग इम्पेशेंट, विदाउट पुटिंग माई सेल्फ इन टू एनी काइंड ऑफ स्ट्रेस. बिकॉज अब मैंने पीटी बंद कर दिया तो मैं खुद से वर्कआउट करूंगी. सो आई वांट टू शेयर माई वर्कआउट स्प्लिट विद यू गाइज कि मैं किस दिन क्या वर्कआउट करती हूँ, कैसे मैं अपनी बॉडी को अभी भी मेंटेन कर रही हूँ, एंड व्हाट एम आई ईटिंग इन अ डे, एंड हाउ मच इट कॉस्ट एक हेल्दी लाइफस्टाइल गार्नर करने में. सो ऑल ऑफ दैट आई विल बी शेयरिंग विद यू गाइज. आई विल बी शेयरिंग मोर रेसिपीज. सो डेफिनेटली सब्सक्राइब इफ यू आर न्यू हियर, एंड आप घंटी भी बजा दो ताकि आपको नोटिफिकेशन आ जाए जब मैं वीडियो अपलोड करूँ. वैसे तो मैं यूजुअली वीडियो अपलोड करती हूँ एवरी फ्राइडे सुबह 11 बजे. सो स्टे ट्यून्ड, एंड आई एम ऑल्सो ट्राइंग टू अपलोड मोर शॉर्ट्स, मोर रील्स, मोर स्टोरीज. इंस्टाग्राम पे मैं बहुत ज़्यादा कनेक्टेड रहती हूँ आप लोगों से. सो यू कैन फॉलो मी देयर @thatquirkymiss. एंड टिल देन ध्यान रखो अपना, बिल्कुल स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है. इट विल हैपन, एंड आई विल सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम. बाय.